Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Yes, sir. Sir, we wait for 2-3 minutes and then we'll start, sir. Okay, okay. And sir, after your introduction, we'll ask you to turn on camera, just for sake of this screenshot. Yes, ma'am. Okay, sir. And after that, you can turn off your camera also if you want. Okay. So you're working as a assistant professor right now, Yeah, ma'am. and Yes, you're ma'am. also working as a software developer at Macriotic company. Yes, Macro Innovation Private Limited. Yes, sir. Yes, sir. Macrioto Innovation Private Limited. Means simultaneously you are doing both the things. Yes, yes. I'm just a owner of that company, so that there are teams who is leading my company as a Okay. leader. So basically, Okay. I also the part of that team. Okay. Means you are entrepreneur also. Yeah, So ma'am. good, sir. It's a good thing, sir. Very good, sir. And so you are pass out in which year? B? Uh, Actually, I have done my engineering in 2014 from Rambegi Institute of Technology, Amravati. I'm same with ME. I done my masters from the same college in 2016. So currently, I'm pursuing my PhD from Lovely Professional University, Punjab. Okay. You are also Yes, completing ma'am. PhD. Good, good, sir. Very good, sir. And also kind of working, looking for your company means you're also working with your company means there are many more tasks you are doing. Yeah, simultaneously, Yes, I'm helping to those students who is not basically aware of the technologies, what they can learn, what they can do after diploma, what they can do after engineering, what they can do after 12th standards. So I'm basically yes, doing some Samas Seva type like works. yes, sir. My student told me that sir is willingly means sir is very willingly taking this lecture and free of cost, so thankful. We are so thankful, sir, Yeah, for ma'am. that. It's my pleasure, ma'am. Yes, and it's because of loud lockdown it's good we can communicate through online, Yeah, ma'am. otherwise it won't be possible to come here and deliver the lecture, right, sir? So exactly. So 19 participants are there. We'll wait for 2 minutes more, and exactly at 11:10 we'll start the lecture, sir. Okay. So today you are in college? No, ma'am, we have off at third Saturday and first Saturday usually. Oh, So we can do some government type of works like बैंक में जाना है पैसे निकालना है ऐसे कुछ काम जो होते हैं जो yes, गवर्नमेंट से related, वो क्या आप कर सकते हो rather yes. off second or fourth Saturday. Oh.
Sir will start the session. Okay, sir. Yeah, ma'am. So Sure. 17 student and plus we 4 are there. So No problem. 20 are there participants, and students will join within 10-15 minutes. Okay, no problem. Good morning, students. Good morning, sir, Nikhil Karare, sir. I would like to welcome all of you for this webinar on Java need and application. Yes, sir. Thank you, sir. Today we have our expert Nikhil Karare, sir. He has completed his B and masters from Amravati, and he is right now working as an assistant professor of computer engineering at DRGIT and R Amravati from last 5 years, and he is also working as a software developer at Macrioto Innovation Private Limited from last 3 years. He as an entrepreneur, he has started the company, and he also working as a assistant professor. So today we have a expert who is a multi personality, who is doing multitasking, and so we are lucky to have Nikhil Karare sir as a expert. His specialization is web development from last 3 years, and he is willingly taking this webinar on Java need and development. So I request all students to patiently listen the webinar, and if you have any doubts, then you can ask the question at the end of the session. Okay, student. So I welcome our expert Nikhil Karare sir to conduct this webinar. Okay, students. And now I request our committee members and Nikhil Karare sir, please turn on the camera so that we can take one screenshot before starting the lecture. Okay, before starting the webinar, we will take a one snapshot. So committee members, please turn on your camera. Vivit? Preshit is also not there. Preshit, turn on the camera, Preshit. I cannot see you. Yes. What about computer department event manager? Other event managers are not there. Preshit, turn on the camera. Okay. Preshit is not there. It's okay. So, yes, sir, it's done. Yeah. Thank you, sir. Thank you, students. So I request you to conduct this webinar. Okay, ma'am. So I hope my screen is visible to all of you. Yes, sir. Okay, fine. So basically, the what webinar title is suggested that it's a Java need an application. Am I right, guys? Okay. Yes. So no interaction. Okay, fine. So actually the one म्हणजे एका हाताने ताडी वाजत नाही तुमच्या पुणेकरीमध्ये एक मन असेल एका हाताने ताड़ी नहीं वाजत जस्ट लाइक अगर मैं आपसे बात करता हूँ और अगर आप इंटरेक्शन नहीं रखते हो सो इट विल नॉट गोइंग टू बी रिफ्लेक्ट राइट सो आई जस्ट मेक श्योर कि जब इंटरेक्शन चाहिए आप प्लीज इंटरेक्ट कीजिए ओके सो व्हाट टाइटल इज जावा नीड एन एप्लीकेशन एम आई राइट Yes, sir.
Okay, but the good news is, apart from the Java, yes, I will cover every part which I have which I have given in this content, right? What is Java, history of Java, why is Java is popular, working of Java program, execution, application, careers in Java. But apart from that, sir, Java नहीं है. I hate Java, right? So, is there any career for me? मैं जॉब ले सकता हूँ कंप्यूटर साइंस के बाद. एग्जैक्टली, देर आर मल्टीपल वेज यू कैन अर्न जॉब्स, यू कैन अर्न गुड सैलरीज इफ यू हेट जावा एज वेल. ओके, सो आई विल मेक यू लव इन जावा, आई विल मेक यू पॉसिबल कि आप जावा से प्यार कीजिए और आप उसको लाइक कीजिए, ठीक है. सो ये सारी चीज़ हम अभी कवर करने वाले हैं. अब जो लोग, आई गेस दिस इज वर्कशॉप फॉर, आई गेस दिस वेबिनार इज फ्रॉम सेकंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटेक्निक, राइट? So I am not expecting too much that you know about programming or you know something about Java, right? So what do you mean by program first? If you know anyone, can explain what do you mean by Java or what do you mean by program? Why we need to learn programs? यस, नो वन. ओके, सो बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 5 + 6 कितना होता है, यस, कितना टाइम लगेगा आपको आंसर देने के लिए? 5 + 6 कितना होता है? 5 + 6. यस, आई एम वरीड अबाउट आई एम ऑडिबल और नॉट. एक्चुअली मुझे मेरा आवाज आ रहा है सभी को? Yes, sir, you Yes, are sir. audible. Students, answer the questions whenever sir asks the questions. सर, Okay, कैन you should answer. क्वेश्चन? यस, 5 + 6 कितना होता है? 5 + 6 कितना होता है? 11. Right. 11. Simultaneously, similarly, I make a problem complex like 11 + 39 कितना होता है? You will answer 50. और अगर मैं क्वेश्चन को और थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ, 55 multiplied by 67. Okay, now you will take such a time, right? You will take 2 minutes or 3 minutes to solve this problem and you will give an answer. So apart from thinking that कि मेहनत हम क्यों करें, right? हम क्यों मेहनत करें, हम क्यों सोचे इतना? तो rather I will create a program that will take 2 numbers from us. हमारे से 2 नंबर लेगा और वो क्या करके देगा हमको? That the program will find multiplication for us. Okay, so कितने जल्दी हो जाएगा? So whenever we give a two program, it might whatever the number is, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी कोई सा भी नंबर हो, राइट? अगर हम उनको देंगे, कंप्यूटर प्रोग्राम को देंगे, that will automatically given an answer, क्योंकि हमने उसका प्रोग्राम ऐसा डिफाइन किया हुआ है. सो एग्जैक्टली, तो बेसिकली प्रोग्राम इसीलिए हम बनाते हैं कि जो ह्यूमन इफर्ट्स होते हैं, जैसे अभी हम टीवी बैठे, सोफे पे बैठे टीवी वगैरह देख रहे हैं और मुझे पंखा लगाना है या फैन लगाना है, ठीक है? फैन का स्विच बहुत दूर है, राइट? सो साइमल्टेनियसली आई विल मेक अ प्रोग्राम दैट विल टर्न ऑटोमेटिकली फैन. जो दे विल नीड IoT डिवाइस और जो डायरेक्टली सेंसर से कनेक्टेड रहेगा. सो जब भी मैं बटन प्रेस करूँ, राइट, इंफ्रारेड रेस से वो फैन आपका चालू हो जाएगा, जो भी है. सो ये जो होता है, ये होता है प्रोग्राम्स. तो प्रोग्राम बेसिकली इसीलिए बनाया जाता है कि हमारा काम क्या हो, आसान हो. सो फिर यहाँ पे तो सर वेराइटी ऑफ प्रोग्राम होती है, जैसे पाइथन होता है, सी लैंग्वेज होता है, C++ होता है, जावा होता है, रूबी, पर्ल, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप. यू कैन सी थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेज इन कंप्यूटर साइंस. सो हम कौन सी लैंग्वेज पढ़े और आप जावा के बारे में ही क्यों बता रहे हो, राइट? सो जब 1971 में द फर्स्ट वेरी पॉपुलर लैंग्वेज हैज बीन मेड, दैट इज सी लैंग्वेज. 1972 के करीब. किसी को पता है सी लैंग्वेज किसने बनाई थी? डेनिस रिची. या ग्रेट, डेनिस रिची ने बनाई थी. देन C++ इवॉल्व हुआ, देन इट हैज बीन मेड बाय बिजाने स्ट्रप, इन्होंने बनाई थी. अब उसके बाद 1982 के करीब ये C++ लैंग्वेज बनी थी. तो ये जावा का लैंग्वेज का इवॉल्व क्यों हुआ और जावा लैंग्वेज कैसी बनी और जावा पॉपुलर क्यों हुआ, ये अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है? सो जावा पॉपुलर होने का कारण ये था कि जैसे इमेजिन कीजिए C++ का सबसे पहला यूज क्या था. तो सभी ने सेट टॉप बॉक्स वगैरह देखे होंगे, एम्बेडेड सिस्टम के हार्डवेयर वगैरह देखे होंगे. जैसे सेट टॉप बॉक्स होता है तो ऑटोमेटिकली आपसे रिमोट से कैप्चर लेता है और एक पर्टिकुलर चैनल डिस्प्ले करवा देता है टीवी पर, बराबर है? वो एक सेट टॉप बॉक्स होता है. उसकी जो कोडिंग होती है वो C++ ने बनाई थी. अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी थी, उस कंपनी का नाम मैं यहीं पे लिख देता हूँ. मैंने अभी नोटपैड ओपन किया, सभी को विजिबल है नोटपैड? No, sir, you have Yes, sir. please share the PowerPoint presentation. Okay, fine. So better, actually, I'm not aware of this Microsoft Teams, so better I will just
यहीं पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन कि जावा जो सिस्टम थी या जावा जो प्रोडक्ट था, ये बना था 1981 में। मतलब 1981 में जो कंपनी बनी थी, दैट इज सन माइक्रो सिस्टम। वो कंपनी क्या करती थी, सी प्लस प्लस का यूज कर कर एम्बेडेड सिस्टम बनाती थी, सेट टॉप बॉक्स बनाती थी। कब कब की बात कर रहा हूँ मैं, 1981 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1981 के करीब जेम्स गॉसलिंग, उसके साथ आपको पता हो या ना पता हो, विवेक खोसला नाम के पर्सन थे। विवेक खोसला नाम पता होगा या फिर सुना होगा। विवेक खोसला इज एन इंडियन पर्सन जो आईआईटी खड़गपुर से पास आउट थे। सन माइक्रो सिस्टम के वो को फाउंडर थे। सो देर वाज अ टू पर्सन्स, जेम गॉसलिंग एंड विवेक खोसला, विच वॉज द फाउंडर ऑफ द सन माइक्रो सिस्टम कंपनी, ठीक है। 1981 में बनी थी। पहले क्या करते थे, सेट टॉप बॉक्स पे काम करते थे। सेट टॉप बॉक्स मतलब इमेजिन कीजिए आज के जमाने में जैसे सैमसंग का सेट टॉप बॉक्स है, और ये एक फॉर एग्जांपल सोनी का सेट टॉप बॉक्स है। एक नाम बता रहा हूँ जो आपको नाम पता है, ठीक है। सो इनके जब हम सेट टॉप बॉक्स की कोडिंग देखते हैं तो ये कोडिंग बनती थी सी प्लस प्लस में। अब लैटर दे आर रियलाइज दैट कि एक, जैसे सैमसंग के लिए अगर मैं कोडिंग कर लेता हूँ, एक सेट टॉप बॉक्स के लिए कोडिंग करना पड़ता है, वही कोडिंग हमको क्या करना था, बार बार दूसरे सेट टॉप बॉक्स के लिए करनी पड़ती थी, बिकॉज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म अलग था, क्योंकि सैमसंग की जब बात करते हैं दिस प्लेटफॉर्म, दूसरा प्लेटफॉर्म होता है, और जब सोनी की बात करते हैं तब दूसरा प्लेटफॉर्म होता है। अब बेसिकली प्लेटफॉर्म क्या होता है, इफ यू नो अबाउट प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म इज एन आर्किटेक्चर ऑफ योर कंप्यूटर, राइट। जैसे आपका कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, उसका एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर होता है। सो आर्किटेक्चर में मैं तीन चीजें कैटेगराइज करता हूँ। एक प्रोसेसर का स्पीड, प्रोसेसर का कितने स्पीड होता है, 32 बिट का होता है, 64 बिट का होता है। ये वर्ड आपने सुने होंगे, 32 बिट और 64 बिट। यस, 32 बिट होता है, मेरा लैपटॉप 64 बिट का है। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि एक माइक्रो सेकंड के अंदर कंप्यूटर आपका कितने बिट्स एग्जीक्यूट करवाता है। सो डेफिनेटली 32 बिट की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, यस, व्हाट दिस मीन, योर कंप्यूटर आर एग्जीक्यूटिंग 32 बिट इंस्ट्रक्शन पर माइक्रो सेकंड। Analogous to that, 64-bit processor means it executing 64-bit instruction at a microsecond, right? So कौन सा पावरफुल बना फिर 64 बिट का बना, तो ये होता है आर्किटेक्चर, ये होता है प्लेटफॉर्म। रैम साइमल्टेनियसली यू कैन इंक्लूड रैम की स्पीड जैसे 4 GB है, 8 GB है। उसके बाद आप आप आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें कैप्चर कर सकते हो कि विंडोज है या लिनक्स है या सोलारिस है या मैक ओएस है। इस तरह का ये तीनों का कॉम्बिनेशन, रैम, देन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड योर प्रोसेसर स्पीड, इसको तीनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म। सो जैसे प्लेटफॉर्म चेंज हो जाता है, आपका सी प्लस प्लस का प्रोग्राम आपको दोबारा लिखना पड़ता था दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए। यू कांट यूज द सेम प्रोग्राम, यू कांट यूज द सेम प्रोग्राम फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Okay, fine. So you can't use the same program for different platform. Just like for example, if I am showing you a diagram, now this was the case previously. C source code, there was a compiler. आपको पता है compiler क्या होता है? Yes, compiler क्या होता है? Compiler will scan the line of code and उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार होता है। ओके, जैसे हमको पता है प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, लाइंस ऑफ कोड, राइट। लाइंस ऑफ कोड होती है। अब जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो, चलो मुझे अभी कंप्यूटर को बताना है कि 64 + 6 35 करो, 64 + 35, बट ये चीजें कंप्यूटर को सच में समझ में आती है क्या? 64 + 35 करके तो मुझे ये समझ में आती है चीज? नहीं आती। क्यों? कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली विच काइंड ऑफ लैंग्वेज? बाइनरी। बाइनरी। सो बाइनरी लैंग्वेज अगर आपको है, यस, बाइनरी लैंग्वेज अगर आपको क्रिएट करना है, सो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कैसी मेहनत? कैसी मेहनत? जैसे अगर मैं ए का बाइनरी नंबर आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज द बाइनरी नंबर फॉर कैपिटल ए? ओके, सो या फिर या कैपिटल सी या कैपिटल डी, सो ये थोड़ा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है। कैसे क्या? जब बाइनरी नंबर डिसाइड किए गए थे, तब सबसे पहले एक आस्की नंबर स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसका डिसाइड हुआ कि हर एक कैरेक्टर का जो भी आप पॉसिबल कीबोर्ड से इनपुट दे सकते हो, उसका हर एक का आस्की नंबर डिसाइड किया गया है। जैसे कैपिटल ए का 65 होता है, राइट, कैपिटल बी का 66, लाइकवाइज ये सीरीज आगे बढ़ती रहती है। कैपिटल सी का 67, कैपिटल डी का 68, कैपिटल डी ई का 69। तो इस तरह से कैपिटल जेड का आप बोल सकते हो कि 91, राइट, 26, ओके, 90 कैपिटल जेड का हो जाएगा। उसी तरह से स्मॉल ए का कौन सा होता है? उसी तरह से स्मॉल ए का कौन सा होता है?
97 आपको नहीं पता है? ओके, सो आप इसको जरूर पढ़िए कि आप सर्च कर सकते हो कैरेक्टर्स एंड देयर आस्की लेटर्स, कैरेक्टर्स एंड देयर आस्की लेटर्स। ओके, सो इससे क्या होगा सर? सो डेफिनेटली अगर मैं बोलूँ आपसे कि 65 आस्की नंबर है किसका, कैपिटल ए का, तो इसी नंबर का आपको क्या करना होता है, बाइनरी नंबर फाइंड आउट करना होता है। सो पॉसिबली अगर ये आपको पता होगा, आपके करिकुलम में होगा कि कैसे आप एक डेसिमल नंबर से, मतलब एक डेसिमल नंबर 65 is a decimal number, so how you can go for, how you can convert your decimal number into binary number, so you'll feel that it's a very hectic part, it's a very hectic part। और जब हम इसको प्रोसेस के थ्रू देखते हैं कि अगर मुझे पहले आस्की नंबर देखना पड़ेगा किसी लेटर का, फिर उसी आस्की नंबर का मुझे बाइनरी नंबर निकालना पड़ेगा, तो ये बड़ी हेक्टिक प्रोसेस होती है। सो देयर आर कंपाइलर्स, दिस आर द प्रोग्राम विच मेक योर वर्क वेरी स्मूथली एंड वेरी efficiently, that is compiler। Compiler knows whatever the ASCII number of the letter and simultaneously it convert into binary number। Are you getting my point? Okay, compiler is the program, compiler is the program which take input as a high level language। What do you mean by high level language? जैसे आप बोल रहे थे आप कि 65 आपको क्या निकालना है, 65 की आपको एडिशन निकालनी है। सो बेसिकली 65 इज द लैंग्वेज विच यू इजीली अंडरस्टैंड, सो वी कॉल इट एज अ हाई लेवल लैंग्वेज। 65 जो आपको इजीली समझ में आता है, और यू कैन से अमरावती और पुणे, दिस आर द लेटर्स यू अंडरस्टैंड वेरी इजीली। सो दिस आर द हाई लेवल लैंग्वेज विच टेकन बाय द कंपाइलर। नाउ व्हाट कंपाइलर अंडरस्टैंड, कंपाइलर को क्या पता होता है, कंपाइलर नो एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब जो भी आप कीबोर्ड से इनपुट दे सकते हो उसके बारे में सब जानकारी कंपाइलर को होती है। उसका रिस्पेक्टिव आस्की नंबर उसको पता होता है। तो फर्स्ट स्टेप विल बी इट विल कन्वर्ट इनटू आस्की नंबर, और कंपाइलर विल अगेन convert that ASCII number into binary number। Okay, so we get a binary number, we get a binary number, and because of the linker, because of the linker we create a exe file। Okay, so there are multiple we can say there are multiple actors behind the execution of any program। जैसे अभी यहाँ पे सी की बात मैं अगर करता हूँ, तो हमको पता है कि यहाँ पे कंपाइलर होता है जो बाइनरी में कन्वर्ट करके देता है, उसके साथ असेंबलर की भी मुलाकात हो जाती है जो असेंबलर एक्जैक्टली बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके देता है। बट आप इतना डिटेल में मत देखिए, आप सिर्फ कंपाइलर को ही सोचिए कि कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपसे एक हाई लेवल कोड लेता है, हाई लेवल एक लैंग्वेज का कोड लेता है, अल्फाबेट्स लेता है, और उसको क्या कन्वर्ट करके देता है, बाइनरी में कन्वर्ट देता है। बट आप सभी को पता है जब भी कोई प्रोग्राम मुझे रन करना है, चलो आपका एग्जांपल लेते हैं, आप मोबाइल में ऐप ओपन करते हो बहुत सारे। हैव यू एवर नोटिस दैट कि आपके मोबाइल के ऐप का एक्सटेंशन कौन सा होता है? यस, हैव यू एवर नोटिस, कभी नोटिस किया है आपने जब आप किसी से शेयर इट से, पुराने जमाने में शेयर इट से, अब कभी आप जब ऐप शेयर करते थे तो उसका एक्सटेंशन क्या होता था? APK। Yes, APK, right? So we want APK file to means to run and to install any app onto your Android device, right? उसी तरह से जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हम करते हैं, we want a exe file which stand executable file। So कभी भी अगर हमको ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू फाइल एग्जीक्यूट करवानी है, so we create a exe file। Now who makes exe file from the binary number we have? जब ये बाइनरी आउटपुट देगा हमको तो exe कौन कन्वर्ट करके देगा? सो उसके लिए कौन पॉसिबल होता है? लिंकर होता है। ओके, सो वी हैव आई गेस 2 आवर, तो मैं सारी चीजें बेसिक से कवर करना चाहता हूँ। वी गो फॉर द नीड्स एंड एप्लीकेशन एज वेल। सो बेसिकली ये चीजें होती है, बहुत बार सुने होते हैं हमने कि कंपाइलर होता है, लिंकर होता है, तो उसी को हम कवर कर रहे हैं। आई गेस कंपाइलर सगळ्यांना समजलं, कंपाइलर क्या होता है सबको समझ में आया है? Okay, now we get a binary number, we get a binary number because of the compiler when it receives the high level language। Now what exe makes us, what exe which is the program which makes exe file from the compiler। So इसके पीछे होता है linker, इसके पीछे कौन होता है? linker। Now when the linker makes an exe file, और जब आप विंडोज पे ओपन करोगे प्रोग्राम को, बराबर है, तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिन कहाँ पे था? ये चीज का ओरिजिन था वो किस पे था? विंडोज पे था। सो ये विंडोज पे ही डायरेक्टली रन हो जाएगा। बट जब हम लिनक्स की बात करते हैं, मतलब जब हम प्लेटफॉर्म चेंज कर देते हैं, जब प्लेटफॉर्म पे चेंज कर देते हैं, तो ये प्रोग्राम ओपन नहीं होता है। सो दैट वाज द before Java comes। James Gosling was facing the same problem। James Gosling was facing the same problem कि एक सेट टॉप बॉक्स में किसी कंपनी के लिए या किसी प्लेटफॉर्म पे बनाता हूँ, तो दूसरा प्लेटफॉर्म जब आ जाता है तो मुझे सेम टाइप का कोड, सेम टाइप का कोड बता रहा हूँ मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेम लाइंस ऑफ कोड, आई एम टॉकिंग अबाउट सेम टाइप ऑफ कोड जिसका वर्किंग सेम है।
उसी टाइप का कोड मुझे क्या करना पड़ता था, अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए करना पड़ता था, बराबर है। सो दे फील इट्स अ वेरी हेक्टिक पार्ट एंड दे ट्राई कि इसको अभी हमको रिड्यूस करना ही पड़ेगा, इसको हमको खत्म करना ही पड़ेगा। सो दे हैव मेक अ लैंग्वेज कॉल्ड एज जावा, दे मेड अ लैंग्वेज कॉल्ड एज जावा, सो विच बेसिकली द वर्किंग ऑफ जावा इज लाइक द डायग्राम में दिया हुआ है किस तरह से काम करता है, ठीक है। ओके, सो बेसिकली जब हम जावा के प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो कुछ इस तरह से कोड लिखते हैं। अगर आपको डायग्राम दिख रही है बेटर, ओके, दिख रही है सभी को डायग्राम? Yes, sir. Yes. Okay, so there is a Java program. You can see a number of lines are there. Obviously, program is nothing but a lines of code जो हम हमारे लैंग्वेज में लिखते हैं, बराबर है, हमने लिखी है हमारे लैंग्वेज में। नाउ अभी इसको हम क्या करेंगे, बिकॉज वी नो द जावा, बिकॉज वी नो, क्योंकि हमको ये फाइनली किससे एग्जीक्यूट करवाना है, कंप्यूटर से एग्जीक्यूट करवाना है। बट अगर आप ये एज इट इज कोड अगर आप कंप्यूटर को दे देंगे तो क्या बोलेगा कंप्यूटर, ये लैंग्वेज हमको नहीं समझ में आती है। what we understand only binary language, we understand only binary language. So who makes a binary language for us? There is a program called as compiler, there is a program called as compiler. If I detail, अगर मैं डिटेल में बात करूं, so there is a software inside JVM, कौन सा होता है, जावा सी। अभी JVM क्या होता है, JRE क्या होता है, आई विल कवर दैट पार्ट आल्सो। बट जावा का प्रोग्राम हम क्या करते हैं, जावा सी के प्रोग्राम के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। नाउ आफ्टर द कंपाइलेशन, यस, कंपाइलेशन क्यों करना होता है ये समझ में आ सबको, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट वी वांट कि हमारा जो भी प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल इन दिस प्रोग्राम आई एम राइटिंग अ कोड ऑफ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, मुझे 2 नंबर के एडिशन का कोड यहाँ पे लिखना है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बट ये प्रोग्राम मैं डायरेक्टली कंप्यूटर को तो नहीं बोल सकता हूँ कि आप इसको मेरे लिए एग्जीक्यूट करके दीजिए, क्योंकि ये बोलेगा कि मुझे तो बाइनरी समझ में आता है। ओके रुकिए, मुझे एक पर्सन पता है, मुझे एक सॉफ्टवेयर के बारे में पता है जो मुझे बाइनरी में कोड करके दे सकता है। सो बेसिकली जावा का प्रोग्राम अगर हमको बाइनरी में चाहिए, सो देयर इज अ जावा कंपाइलर, सो जावा सी, ओके। सो क्या करके देता है हमको, बाइनरी में कोड करके देता है, इसी को बोला जाता है बाइट कोड। और इस ये जो फाइल बनती है आफ्टर गोइंग फ्रॉम द जावा सी, इसकी जो फाइल बनती है वो बनती है क्लास फाइल। मतलब कैसा, अगर आपने डेमो डॉट जावा प्रोग्राम लिखा है तो आपकी कौन सी फाइल बनेगी, डेमो डॉट क्लास फाइल। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। यही फाइल हम क्या करेंगे बाद में। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, नाउ इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन, कि ये मैंने विंडोज में लिखा है, ओके नो प्रॉब्लम, और ये मैं जो एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ ये लिनक्स पे है। सो विंडोज एंड लिनक्स, सर अभी आपने बताया कि ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब विंडोज पे कोई फाइल बनती है तो सेम कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर पे ही वो एग्जीक्यूट हो पाता है, तो ठीक है। बट जब हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चाहते हैं तो एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो ये जो प्रॉब्लम था जेम्स गॉसलिंग ने आइडेंटिफाई किया, एंड दे हैव मेक अ वर्चुअल मशीन, जिसको नाम दिया उन्होंने जावा वर्चुअल मशीन। सो ये कोड सी लैंग्वेज में अगर आप देखोगे, ये जो exe फाइल था, ये कोड डायरेक्टली किसको दे रहे थे वो, या फिर जो भी कंपाइलेशन के बाद जो भी कोड जा रहा था वो डायरेक्टली किसके पास जा रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जा रहा था। किसके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। बट व्हाट जावा मेड अ डिफरेंट थिंग, लाइक कि उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आपका कोड नहीं जाएगा, आपका कोड कहाँ पे जाएगा, जावा वर्चुअल मशीन। ओके व्हाट एग्जैक्टली दिस, ओके ये क्या होता है, तो इसके पास एक इंटरप्रेटर होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटरप्रेटर। नॉर्मल लाइफ में भी अभी ये वर्ड हम यूज करते हैं इंटरप्रेटर। आप मुझे गलत इंटरप्रेट कर रहे हो, आप मुझे सही ही इंटरप्रेट कर रहे हो, आप नहीं इंटरप्रेट कर पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये जो भी वर्ड होता है इंटरप्रेट मतलब क्या, इट विल अंडरस्टैंड कि जब हम जावा वर्चुअल मशीन को डाउनलोड करते हैं तब उसको पता होता है, यस, बिफोर एवरीथिंग, मतलब कोड लिखने से पहले, कंपाइल करने से पहले भी क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन को ये पता होता है कि मैं किस ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल हूँ। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनीथिंग, आप कुछ भी करने से पहले जब हम जावा वर्चुअल मशीन को हमारे सिस्टम में डाउनलोड करते हैं तो हमारे सिस्टम का जो भी आर्किटेक्चर होता है, जो भी प्लेटफॉर्म होता है, वो जेवीएम के पास आ जाता है। नाउ फॉर एग्जांपल ये मैंने बताया कि ये कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बराबर है। नाउ व्हेनेवर आई इंस्टॉल दिस जेवीएम इनसाइड द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सो व्हाट्स जेवीएम हैज एन इंफॉर्मेशन अबाउट मी, जेवीएम के बाद जेवीएम के पास कौन सी इंफॉर्मेशन है मेरे बारे में, कि मेरा आर्किटेक्चर कौन सा है, मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है, मेरा प्रोसेसर का स्पीड कौन सा है, ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास आ जाती है, जेवीएम के पास आ जाती है। ओके समझ लो इतना। ओके सो आगे क्या होता है,
आगे क्या होता है, ये जो कोड है राइट, ये जो आप पहली लाइन देख रहे हो, ये जो पहली आप लाइन देख रहे हो 00111, ये लाइन कौन कॉल करता है, ये लाइन जाती है किसके पास, इंटरप्रेटर के पास। ओके, नाउ इंटरप्रेटर अंडरस्टैंड, ये जो लाइन आ रही है मेरे पास, ये लाइन किससे आ रही है, ये लाइन आ रही है फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विंडोज। कहाँ से आ रही है, विंडोज से आ रही है। बट इंटरप्रेटर नोज दैट कि ये जो लाइन विंडोज से आ रही है, अगर मैं एज इट इज इसको दे देता हूँ किसको, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, इट विल नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। सो व्हाट इंटरप्रेटर डू, अ कन्वर्सेशन, सॉरी वी कैन से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कोड इनटू लिनक्स। मतलब ये क्या करता है इंटरप्रेटर, उसी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड को किस में कन्वर्ट कर देता है, लिनक्स में कर देता है। और इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, लाइन बाय लाइन। नाउ व्हाट डू मीन लाइन बाय लाइन, सो ये जो लाइन दिख रही है आपको, बेसिकली यहाँ पे 4 लाइन दिख रही है, ऐसे बहुत सारे लाइंस होती है जब हम कोई बड़ा प्रोग्राम जब हम कंपाइल करते हैं। सो यू कैन सी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लाइन, बट कभी भी वो डायरेक्टली काम नहीं करता है इंटरप्रेटर। इट विल स्कैन फर्स्ट लाइन, टेकन एज ए इनपुट, उसको कन्वर्ट कर देता है लिनक्स में। नाउ व्हाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डूइंग इट्स वर्क, जब ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम कर रहा है, वो क्या करता है इंटरप्रेटर, इट विल रिक्वेस्ट अनदर लाइन फ्रॉम द क्लास फाइल। तो ये सेकेंड लाइन रीड करेगा और उसको फिर से कन्वर्ट करके देगा लिनक्स में। सो एट द टाइम ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूटिंग द कोड, वो क्या करता है इंटरप्रेटर, अगेन आस्किंग द थर्ड लाइन फ्रॉम द क्लास फाइल। सो लाइकवाइज आप देख पा रहे हो, इंटरप्रेटर एक ऐसा एक बड़ा एक्टर है, एक ऐसा बड़ा फरिश्ता है एक प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, कि जिसकी वजह से क्या हुआ, एक कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट कर पाते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ विच कंपोनेंट, इंटरप्रेटर कंपोनेंट। तो ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया आपको। सो व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। हेलो, आर यू देयर? Yes, sir. ओके, फाइन। सो व्हाई मेक जावा पॉपुलर? ओके, जावा को कौन पॉपुलर किया, जो बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। क्योंकि सी प्लस प्लस, यस, जब हम सी प्लस प्लस की बात करते थे तो सी प्लस प्लस वॉज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। सी प्लस प्लस वॉज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, और ये कोड हमको बार बार प्लेटफॉर्म के लिए लिखना पड़ता था। सो इन 1982 they are suffering from the same kind of problem till the 1991. So in 1991 they are creating such a program or such a virtual machine, so that will make any program platform independent. Now one more important question normally asked by the interviewer, कि जावा का प्रोग्राम ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है या डिपेंडेंट होता है? तो आप बड़ी आसानी से बता देते हो कि जावा ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन लाइन, यूजुअली लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, और उनको पता होता है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। सो जानबूझकर इंटरव्यूअर वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि जेवीएम जो है आपका, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, इट्स अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। सो वो बेसिकली वो देखना चाहते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है, स्टूडेंट है, वो एक अच्छा लिसनर है या फिर एक रट्टा मारू स्टूडेंट है, बराबर है, वो ऐसा देखने की कोशिश करते हैं। सो जेवीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो जैसे मैंने बताया कि जब JVM इंस्टॉल होता है, दे नो अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच इट इज इंस्टॉल्ड। जैसे मैं आपके सामने एक लिंक भी बता सकता हूँ। ओके, सो फॉर एग्जांपल ये है ओरेकल की वेबसाइट, राइट? ओरेकल की वेबसाइट है। अब इससे आप जावा एससी वर्जन 15, तो लेटेस्ट वर्जन 15 है स्टैंडर्ड एडिशन का। अब जावा के 3 वर्जन आते हैं, एसई, डबल ई और एक आता है एमई। वो तीनों भी वर्जन के बारे में बताऊंगा मैं आगे के स्लाइड में। फिलहाल मैं एसई की बात कर रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड एडिशन मतलब जो भी फंडामेंटल्स ऑफ जावा होते हैं, बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कुछ स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हमारी कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट होगा, दैट विल नॉट गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट एनीवेयर, हमारे ही कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट होगा, उस हमारे यूज के लिए हम उसको बना सकते हैं, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पे ही एग्जीक्यूट होगा, उसके लिए बनाते हैं हम स्टैंडर्ड एडिशन प्रोग्राम। तो आपने देखे होंगे मेडिकल्स में, मेडिकल मध्ये बाहेर से एंट्री करतात गोड्याची वगैरह, वो आपने देखे होंगे, या फिर बिलिंग सॉफ्टवेयर वगैरह होता है जो फिर एक ही कंप्यूटर के अंदर होता है, या फिर कैलकुलेटर्स होता है, ये जो भी कुछ ऑप्शन होता है ये स्टैंडर्ड एडिशन में बनते हैं, जो कम स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम
जो किसी से कनेक्टेड नहीं है उसके साथ ही वो एग्जीक्यूट होता है। सो जब इसको हम डाउनलोड करेंगे जेडीके डाउनलोड को, या फिर जेडीके के अंदर ही क्या होता है, यस जेडीके इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेआरई प्लस जेवीएम। सो जब इसको हम डाउनलोड करेंगे, आप देख पा रहे हो लिनक्स, मैक ओएस एंड विंडोज, यू कैन सी देर आर मल्टीपल ऑप्शंस हियर। मतलब आप विंडोज के लिए डाउनलोड कर सकते हो, आप मैक ओएस के लिए कर सकते हो, आप लिनक्स के लिए कर सकते हो। अब बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए आपके पास अलग अलग जेडीके है। इसका क्या मतलब हुआ, यस इसकी कोडिंग कुछ अलग होंगी, इसकी कोडिंग कुछ अलग होंगी। देखो इनडायरेक्टली मैंने ये बात बताई आपको कि जावा का प्रोग्राम क्या करता है, एक ही टाइप का जब काम आपको करना होता था, आपको अलग अलग कोडिंग करनी पड़ती थी। तो ये जो पूरे जेडीके बने हैं ये यूजिंग सी प्लस प्लस बने हैं, बराबर है। सी प्लस प्लस का यूज करके उन्होंने कुछ तो भी जेडीके या जेआरई बनाया है, और आप देख पा रहे हो अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग जेडीके यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। सो बेसिकली वेन एवर द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर कि जेवीएम ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो बिकॉज इट हैज बीन मेड बाय यूजिंग सी प्लस प्लस, सो इट इज क्लियर कट दैट कि वो क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म क्या है, डिपेंडेंट है, क्योंकि वो सी प्लस प्लस का या सी लैंग्वेज के कुछ चीजें यूज करके उन्होंने ये जेडीके को बनाया होता है। बट once yes once it has been installed, once it has been installed successfully, once it has been installed successfully on the operating system जहाँ पे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे विंडोज के लिए चाहिए, तो बराबर ये विंडोज के प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी रखता है। सो कभी भी जब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ने कोड बनाया हो जावा का, ये लिनक्स के प्लेटफॉर्म के हिसाब से बाइनरी कोड बना है, उसको पता है इंटरप्रेटर को यह तो लिनक्स का कोड है, मुझे तो विंडोज में एग्जीक्यूट करना है, कैसे क्या पॉसिबल है, तो ये इंटरप्रेटर बराबर उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। सो दिस मेक्स एन जावा वेरी पॉपुलर, क्योंकि उनको बार बार एक ही कोड लिखने की जरूरत नहीं होती थी। इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं तो पॉसिबल नहीं आपको बताना, क्योंकि अगर आपका जावा करिकुलम में नहीं हुआ है तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू क्वेश्चन, ये सभी आपने वर्ड सुने हैं, आपका जावा करिकुलम में हुआ है आपका, क्लास ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्शन इनहेरिटेंस इनकैप्सुलेशन पॉलीमॉर्फिज्म? नो सर। नहीं हुआ है। No, sir. ओके फाइन, सो ये आपका नहीं हुआ है तो आई कांट आस्क अ क्वेश्चन और आई कांट एक्सप्लेन ऑल दिस इनटू द सिंगल आर, ये एक लेक्चर में पॉसिबल भी नहीं है। सो आई जस्ट वांट टू सिंपली गिव अ टास्क लाइक कि जब भी आप फ्यूचर में जावा पढ़ो, यस दिस आर द पिलर्स ऑफ द जावा, दिस आर द पिलर्स ऑफ द जावा, मतलब पूरी जो जावा लैंग्वेज बेस है वो इसी 5 या 6 पैरामीटर्स, मतलब आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो, नो डाउट। तो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसी से पूरा सब्जेक्ट आपका डिफाइन होता है, जो भी पार्ट्स जो भी सिलेबस में कुछ चीज़ें आती हैं वो इसी से ही मतलब क्या करेंगे हम, डिवाइडेड आ जाती है। जैसे एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, या इनहेरिटेंस से रिलेटेड आपको टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं, इनकैप्सुलेशन से रिलेटेड भी आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो ये सब आपको टाइप्स आपको पढ़ने होते हैं। सो इंटरव्यूअर इस पर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। सो दिस आर द पिलर्स, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और आप इसको ज़रूर अच्छे से डिटेल में पढ़िए, ठीक है। हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो मैंने अभी बताया कि ये लैंग्वेज बनी थी, जावा बनी थी जेम्स गॉसलिंग के द्वारा, और ये लैंग्वेज बनी थी 1991। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि वो कहाँ से काम करते थे, सेट टॉप बॉक्स प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे, और वहीं पे उनको इतना टॉलरेंस मिला, वहाँ पे इनको हेक्टिक, उनका काम बड़ा हेक्टिक था कि एक ही सेट टॉप बॉक्स की, डिफरेंट सेट टॉप बॉक्स के लिए उनको एक ही टाइप की कोडिंग करनी पड़ती थी। सो दे हैव मेड अ लैंग्वेज कॉल्ड एज जावा, राइट, बट इनिशियली दे हैव गिवन अ नेम एज ओक। ये आपको पता होना चाहिए कि जावा का जो पहला वर्जन था उसका नाम उन्होंने रखा था ओक। ओक वाज अ नेशनल ट्री इन यूएसए, यूएसए के अंदर एक नेशनल ट्री का नाम था। बट लेटर इन 1996 दे हैव थॉट कि इसको अभी पेटेंट बनाना है, इस लैंग्वेज को कॉपीराइट करवाना है, पेटेंट बनाना है, रजिस्टर करवाना है ऑफिशियली, ठीक है, और मार्केट में लॉन्च करना है। बट दे हैव फेस अ प्रॉब्लम दैट कि ओक से पहले ही कुछ चीज़ें रजिस्टर थी, ओक नाम से पहले कुछ चीज़ें रजिस्टर थी। सो दे गिवन अ नेम एज जावा, और जावा क्या होता है, एक कॉपी का मग है जो जावा का सिंबल से बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो जावा नाम कब मिला उनको, 1996 में।
अब सभी को पता है कि 1992 में ये जावा लैंग्वेज बनी और 1996 में उसको ऑफिशियल नाम आया। बट किसी को पता है कि अभी जावा जो प्रोडक्ट है ये किसका है, मतलब अभी जावा किसके अंडर काम करती है? यस, जावा इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओरेकल कंपनी का एक प्रोडक्ट है, बराबर है। सो 10 जनवरी 2010, राइट, 10 जनवरी 2010 सन माइक्रोसिस्टम को ओवरटेक किया, ओरेकल कंपनी ने खरीदा इन $9.6 बिलियन। यू कैन इमेजिन द अमाउंट, राइट, $9.6 बिलियन रुपीज, बिलियन में इसको खरीदा गया। किसको? किसको? जावा को खरीदा गया किससे? सन माइक्रो सिस्टम से। फ्रॉम 2010 इट्स जावा इट्स प्रोडक्ट ऑफ ओरेकल कंपनी, राइट। ओरेकल पता है किसी को? ओरेकल इज फेमस फॉर डेटाबेस। एक ओरेकल खुद का डेटाबेस है और बड़ा स्ट्रॉन्ग डेटाबेस है, और उसी के अभी कंपनी के अंडर कौन काम करता है? उसी के कंपनी के अंडर कौन सी लैंग्वेज का काम हो रहा है? अभी जावा का काम हो रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट मेक्स जावा वेरी डिफरेंट दैन दी अदर लैंग्वेज? की डिफरेंट मतलब अभी बाकी भी लैंग्वेजेस हैं, नए नए लैंग्वेजेस आई हैं, पाइथन है वगैरह वगैरह, पीएचपी है, रूबी है। अब ये लैंग्वेज जावा क्या डिफरेंट बनाती है? तो यहाँ पे बेसिकली जावा इट्स मोस्ट स्टेबल लैंग्वेज एवर मेड, ओके। क्योंकि अभी पाइथन में बहुत सारे इन्वेशंस हो रहे हैं। आई विल कवर दैट पार्ट आल्सो कि पाइथन में कौन कौन सी चीजें हैं, पाइथन में क्या क्या लैगिंग है अभी भी। यहाँ पे एक चीज जो पाइथन में नहीं है, दैट इज नेटवर्किंग। यस, नेटवर्किंग सपोर्ट बहुत जबरदस्त है जावा में, एक्सटेंसिबल है, मतलब जावा को ही आप एक्सटेंड कर सकते हो, तो ही तो हमें इतने सारे लैंग्वेजेस बनी है, ठीक है। सो ये पहली लैंग्वेज थी जावा, जो क्या बनी थी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बनी थी। ना व्हाट डू यू मीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ना व्हाट डू यू मीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? नहीं पता, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या बेसिकली? लेट मी शो। ओके, सो व्हाट यू मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? जैसे एक कोई क्लास आप लेकर हो, जैसे स्टूडेंट क्लास के लिए, नाउ आई एम क्रिएटिंग अ मेगा प्रोजेक्ट लाइक स्टूडेंट, जिसके अंदर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हमको स्टोर करनी है। व्हाट आई एम आस्किंग कि एक स्टूडेंट का एक हमको क्या करना है? रोल नंबर स्टोर करना है और एक कोई नाम स्टोर करना है, बराबर है। अब यस, द फंक्शन लाइक गेट डेटा जो क्या करेगा? यूजर से डेटा रिक्वेस्ट करेंगे, बराबर है। इट विल रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम दी स्टूडेंट, और बेसिकली डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा? वाइट डिस्प्ले। ओके, आई गेस आप इसके बारे में नहीं जानते हो, बट आप मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कि हमने क्या किया है, एक स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाया है, ठीक है। आई होप माय नोटपैड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. ओके, सो ये क्लास स्टूडेंट है, इसके अंदर दो डेटा मेंबर हमने रखे कि जिसके अंदर मैं रोल नंबर और नेम स्टोर करना चाहता हूँ। अब इमेजिन कीजिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, तो अभी मैंने सिर्फ दो ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है। एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया जो क्या करेगा? यूजर स्टूडेंट से डेटा मांगेगा, और एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन लिखा है जो डेटा को डिस्प्ले करने का काम करेगा, बराबर है। अब ये मैंने एक क्लास के अंदर डाल दिया, ठीक है। इस क्लास के अंदर मैंने पुटअप कर लिया। सो वेन एवर आई वॉन्ट टू क्रिएट अ सिमिलर प्रोजेक्ट, ओके, सुनिए मेरी बात, जब भी मुझे इसी तरह का एक दूसरा प्रोजेक्ट बनाना है जो क्या करता है? स्टूडेंट से डेटा मांगता है या स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले करता है, तो मैं क्या करूंगा? आई विल नॉट क्रिएट द सेम कोड अगेन एंड अगेन। यस, मैं इसी कोड को बार बार नहीं लिखूंगा। सो रादर आई विल क्रिएट, यस, मैं क्या करूंगा? इसी क्लास का क्या करूंगा? इसी क्लास का मैं क्या क्रिएट करूंगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। नाउ दिस आर द टर्म्स, इट नॉट बीन अवेयर फॉर यू, ये किसी को पता नहीं होगा, बट आप टर्मिनोलॉजीज को, आप फीलिंग को समझने की कोशिश कीजिए, आप कुछ वे समझने की कोशिश कीजिए। ये जो वर्क मैंने लिखा है, आप इतना तो समझ सकते हो एक स्टूडेंट क्या होता है। स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे रोल नंबर वगैरह होता है, नेम होता है, एज होता है, कॉलेज का नाम होता है, ब्लड ग्रुप होता है, उसका डेट ऑफ बर्थ होता है। ये कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो किससे रिलेटेड होती है? स्टूडेंट से रिलेटेड होती है। तो कोई एक फंक्शन मैंने लिखा है जो क्या करेगा? वो सारी इंफॉर्मेशन मांगेगा, किससे? यूजर स्टूडेंट से मांगेगा। और एक ऐसा भी फंक्शन की हमको जरूरत हो सकती है जो क्या करेगा? उसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले भी करवाएगा। अब मैंने बताया ये चीज कि ये मैंने एक बार कोडिंग कर ली है, मान के चलिए ये कोडिंग मैंने की है 10 जनवरी को,
बराबर है। अब 10 मार्च को सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट मुझे बनाना है, मे बी स्टूडेंट से रिलेटेड ही बनाना है। तो ये तो मैंने बना दिया था, क्या इसी को मैं यूज कर सकता हूँ फॉर द डिफरेंट प्लेटफॉर्म? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है जब डिफरेंट प्लेटफॉर्म की बात आती है तो आपको यही कोड उसके अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। बट जावा क्या है, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, तो इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ फॉर द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ये आपने अभी देखा, ठीक है। ओके, नाउ अगेन यस। सो अब इसको क्या करना है, जैसे भी मुझे एक स्टूडेंट के लिए बनाना है, बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, एक स्टूडेंट का मैंने नाम लिखा है, मान के चलिए मेरा स्टूडेंट का नाम है अक्षय। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड हो जाएंगी, अक्षय से रिलेटेड हो जाएंगी। बट अभी दूसरा स्टूडेंट अगर मेरे पास आता है, जैसे सुनील नाम का स्टूडेंट आता है, तो क्या कोडिंग मुझे सेम बनानी पड़ेगी उसके लिए भी? यस, क्या इसके लिए मुझे सेम कोडिंग करनी पड़ेगी? नहीं। आई विल क्रिएट, यस रादर आई विल क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट लाइक सुनील। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब ये नहीं भी समझता है तो आप इतना समझिए, ये जो कोडिंग है, यस ये जो कोडिंग मैंने ऊपर लिखी है, ये सारी कोडिंग किसके अंदर आ जाएंगे, मतलब ये सारे डेटा मेंबर्स और ये सारे मेंबर फंक्शन किसके अंदर आ जाएंगे, एक बॉक्स के अंदर आ जाएंगे जिसका नाम क्या रखा है मैंने, अक्षय। ये सारी कोडिंग जहाँ पे मैंने डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन लिखे हैं, ये रोल नंबर, नेम, फंक्शंस, ये फंक्शन, ये सारे फंक्शन और जो डेटा मेंबर रखे हैं मैंने ऊपर, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, सुनील के अंदर। अब मुझे बताइए, क्या आप बार बार वो कोडिंग कर रहे हो? अगर तीसरा भी स्टूडेंट आ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरा कोई स्टूडेंट, जैसे राम नाम का स्टूडेंट है, ठीक है, क्या आप उसके लिए डबल कोडिंग कर रहे हो? नहीं। रादर आई विल क्रिएटिंग जस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। उसी क्लास के मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, सो दैट हमारा काम आसान हो, हमको यही कोडिंग बार बार करने की जरूरत ना पड़े। सो दैट्स वाई जावा बिकम सो पॉपुलर, कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के थ्रू काम करवा सकते हैं। लैटर सारे लैंग्वेजेस जावा का कंसेप्ट उन्होंने फॉलो किया, जावा का कंसेप्ट उन्होंने फॉलो किया। और जावा के ऑनवर्ड जितने भी लैंग्वेज बनी फ्रॉम द 1992 ऑनवर्ड, जितनी भी लैंग्वेज बनी, वो सारी कौन सी लैंग्वेज थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नाउ इन सिंपल वर्ड आई कैन से यू कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब होता क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब क्या, कि जो भी काम होते हैं वो सब आप किस पर करोगे, यस वॉट एवर द ऑपरेशन और वॉट एवर द वर्क यू आर गोइंग टू डू आर ओनली बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। आप इसी ऑब्जेक्ट के बेस पर आप काम कर सकते हो। सो जब आप जावा पढ़ोगे आप बिल्कुल आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगी। फिलहाल आप इतना समझिए कि आपको एक ही कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार लिखिए, उसका आप जस्ट क्या क्रिएट करोगे, एक बार लिखिए और उसकी जस्ट आप क्या क्रिएट करोगे, मल्टीपल कॉपीज। कैसे? बाय क्रिएटिंग दी ऑब्जेक्ट ऑफ दी, बाय क्रिएटिंग दी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. ओके फाइन, थैंक यू। So I hope my PPT is visible, right? Yes, is my PPT visible? Yes, sir. Okay. हमने ये तो डिस्कस कर लिया अभी कि हम जावा क्या होता है, जावा का मतलब एक्चुअली जावा का वर्किंग कैसे होता है, और ये क्यों मैंने जावा को सी और सी प्लस प्लस के साथ ही कंपेयर किया। सो डेफिनेटली अगर 1992 में कोई लैंग्वेज बनती है, वी हैव टू कंपेयर दैट लैंग्वेज विद द ओल्डर वन, राइट, सी और सी प्लस प्लस। जो नई लैंग्वेज आई है उसके बारे में अभी आपसे बात तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बट एंड द लास्ट ऑफ द स्लाइड्स आई विल डेफिनेटली कवर दैट पॉइंट आल्सो, कि जो नई लैंग्वेजेस हैं वो कंपेयर हम करेंगे जावा के साथ। और बेसिकली आर यू फ्रॉम द सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से आप अगर हो, तो आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, आप कैसे आपका जो करियर है वो आप स्टेबल करवा सकते हो, वो भी हम पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ठीक है, अभी तो जावा आगे सभी को समझ में आ गया कि जावा क्या था। इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वी नो द प्रोग्राम क्यों करना पड़ता है, टू मेक आवर वर्क वेरी इफिशिएंट एंड वेरी ईजफुल, राइट। सो ये हो गया। सो क्यों सी नहीं सीखना है, सी प्लस प्लस क्यों नहीं सीखना, जावा ही क्यों सीखना है? तो मैंने ये बताया कि जावा इट्स अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, तो यू कांट नीड टू राइट अ सेम कोड अगेन एंड अगेन। बट आपको ये पता होना चाहिए, बट कभी भी जब आप जावा सीखते हो तो डायरेक्टली जावा सीखना मतलब, वही लोग बोले, ऐसा बोला जाता है कि जावा इज नॉट फॉर अ बिगिनर, राइट। सो इसीलिए करिकुलम में आपने देखा होगा बहुत बार कि सबसे पहले आपको सी लैंग्वेज पढ़ाया जाता है और उसके बाद आपको जावा लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। सो इट्स एक्चुअली अ बेस्ट, राइट, ये बेस्ट है, क्योंकि डायरेक्टली आप जावा मत पढ़िए अगर आपको जावा नहीं पता है। आप फर्स्ट गो टू द सी लैंग्वेज, आप
फंडामेंटल्स पढ़िए सी लैंग्वेज के, देन यू विल फाइंड अ वेरी यूजफुल। जावा आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। अब जावा और भी पॉपुलर क्यों हुआ, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो था, नाउ स्टैटिकली टाइप क्या होता है, ये इसके बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा। आई विल कवर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जैसे मल्टी थ्रेडिंग। ना व्हाट डू यू मीन मल्टी थ्रेडिंग? तो बहुत बार लोगों ने आपने गेम खेले होंगे, गेम खेळला असेल मोबाईलमध्ये तुम्ही, आपने देखा होगा कि एक ही टाइम पे कितने सारे कंट्रोल्स रन होते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने सबवे सर्फर गेम सुना होगा, कभी खेले होंगे आपने, ठीक है, वो ट्रेन से ऊपर जंप वगैरह करता है, खेले असेल। और यू कैन फेमस एंग्री बर्ड वगैरह गेम खेले असेल, ये सुने होंगे अगर आपने, तो आपको पता है कि एक जियो ऐप पे मल्टीपल चीजें एक साथ काम करती हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, बराबर है, आपका ट्रेन भी आती रहती है, आप साइमल्टेनियसली सामने सामने भी जा रहे हो, और जैसे आप कॉइन्स को कलेक्ट करते हो तो कॉइन्स भी कलेक्शन का कोड ऊपर तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि 3-4 कोडिंग क्या कर रही है, एट अ टाइम रन हो रही है, बराबर है। सो हाउ दिस इज पॉसिबल एक्चुअली, ये 3-4 कोड कैसे क्या रन होते हैं एक साथ? तो दिस इज मेड पॉसिबल बाय यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग। दिस इज मेड पॉसिबल बाय यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग। सो इन आर यूनिवर्सिटी मल्टी थ्रेडिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस, ठीक है, हमारे सिलेबस में ये नहीं होता है। इट मे बी पॉसिबल कि पुणे के सिलेबस में हो, बट माई रिक्वेस्ट टू स्टूडेंट, अगर ये सिलेबस में हो या ना हो, ठीक है, यू हैव टू गो थ्रू दिस। अगर जावा आप सीखते हो तो ये एक कंटेंट मल्टी थ्रेडिंग अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसको जरूर गो थ्रू कीजिए, आप इसका वर्किंग देखिए जरूर, ठीक है, कि कैसे हम इसको 2-3 प्रोग्राम को एक साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज गार्बेज कलेक्शन। नाउ व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन? सो वेन एवर वी डिक्लेयर समथिंग, राइट, जब भी हम कोई चीज़ें डिक्लेयर करते हैं, सो वो चीज़ क्या होती है, हमको डिलीट करनी होती है। क्यों करनी होती है? जैसे इमेजिन कीजिए अगर हमने 5 MB का रैम यूज़ किया है और कुछ डेटा स्टोर करने के लिए, और हमारा वो चीज़ जो हमने डेटा स्टोर किया है वो डेटा अभी हमारे कोई काम का नहीं है, अब उसको मुझे डिलीट करना है, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा। बट इफ आई फॉरगेट, राइट, अगर मैं भूल जाता हूँ उसको डिलीट करने का, तो खामा खा मतलब विदाउट एनी रीजन 5 MB हमारे रैम में यूटिलाइज हो जाएगा, जिसका हमको यूज भी नहीं करता है क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ स्टोर है, और मैं शायद भूल गया कि उसको डिलीट करना है या उसको रिलीज करना है मेमोरी। अगर मैं भूल जाता हूँ तो इन जावा एक्चुअली, क्योंकि सी और C++ में ये फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं थी, तो यहाँ पे एक जीसी मेथड होती है, यहाँ पे जीसी मेथड होती है गार्बेज कलेक्शन की। ये क्या करती है जीसी मेथड? आपके आपका प्रोग्राम कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के बाद, रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद कंपाइल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करवाता है, और जो भी अनयूज चीजें होती है जिसका आपको यूज आने वाला नहीं है, जिसका आपको कोई फ्यूचर में वर्क होने वाला नहीं है, उसको क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। सो व्हाट इट मेक्स एक्चुअली, जो भी मेमोरी होती है वो क्या करता है, नलीफाई कर देता है, जिसको आप फ्यूचर में मतलब स्टोरेज के लिए आप यूज कर सकते हो। और ऑब्वियसली अगर अननेसेसरी कोड आपके प्रोग्राम में रहता है तो क्या होता है, लाइन ऑफ कोड बढ़ जाती है, और जब भी प्रोग्राम में बहुत सारे लाइंस होती है तो इसका अर्थ क्या होता है, जब भी प्रोग्राम के अंदर लाइंस ऑफ कोड बढ़ जाती है तो उसका अर्थ क्या होता है, आपका प्रोग्राम स्लो हो जाता है, और उसका टाइम भी क्या हो जाता है, एग्जीक्यूशन टाइम भी बढ़ जाता है, और उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमेशा कोड आपका ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर क्या कम से कम लाइन ऑफ कोड रहे, अननेसेसरी कोड बिल्कुल ना रहे, जिससे आपके प्रोडक्ट की इफिशियंसी ज़्यादा से ज़्यादा रहे। सो जावा में हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं। अगर आप जावा यूज कर रहे हो मतलब ये ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर, आपके प्रोग्राम के साथ होने वाला है, कौन सा, गार्बेज कलेक्शन। सो जो भी अननेसेसरी चीज है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ना व्हाट डू मीन रोबस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। व्हाट डू मीन रोबस्ट? ये रोबस्ट आपने देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे हम सिस्टम को ड्यूरेबल बोलते हैं, जैसे आप एटीएम मशीन यूज करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर टेक्निकल सम इश्यूज, इफ देर आर सम टेक्निकल इश्यूज रिलेटेड टू एटीएम, तो कभी भी आपका ट्रांजेक्शन आप जरूर देखिए कि पूरा कंप्लीट नहीं होता है। एक तो आपको एरर आ जाता है कि सिस्टम इज आउट ऑफ सर्विस वगैरह वगैरह, या फिर अगर आपका ट्रांजेक्शन अगर इनकम्प्लीट भी हो जाता है, अगर फोन पे की बात अगर हम करते हैं, तो आपको बोला जाता है कि भाई अभी बैंक का इश्यू है, वैसा इश्यू है, तो ये सिस्टम रोबस्ट है, मतलब यहाँ पे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं ना। हाउ दे मेक प्रोग्राम रोबस्ट? बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो कभी भी कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं कि जब प्रोग्राम के पास एग्जीक्यूशन के लिए कोई कोड नहीं मिलता है, या फिर सर्विस का इशू रहता है,
अभी रैम नहीं है, अभी सिस्टम बंद है, या फिर अभी कुछ टेक्निकल कुछ सर्विस चल रही है सिस्टम में, तो फिर ऐसे वक्त क्या करता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग होनी चाहिए रादर आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट। मतलब एक इमेजिन कीजिए आप एटीएम में जा रहे हो और एटीएम में पैसे आपके नहीं निकले, बट पूरा कोड सक्सेसफुली रन हो गया, मतलब आपके 2000 4000 जो भी आपको विड्रॉ करने थे वो आपके पैसे निकल गए, सॉरी 2000 4000 तुमच्या अकाउंटमधून डिडक्ट झाले, बट पैसे अगर निकलते नहीं है तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं बड़ी इशू हो जाएंगे। तो ये जो होता है सिस्टम रोबस्ट, मतलब क्या, अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है तो ट्रांजैक्शन पूरा सक्सेसफुल करेंगे ही, बट अगर वहाँ पे कुछ पैरामीटर रहते हैं, 2 या 3 अगर पैरामीटर रहते हैं जो उसको लगते हैं कि ये फेल कर सकते हैं ट्रांजैक्शन को, तो वो क्या कर देता है, सिस्टम को पूरा ही रिवर्स में लेके आता है। रिवर्स मतलब पूरा ही स्टार्टिंग में लेके आता है और वो बोलता है कि अभी ये ट्रांजैक्शन ये टाइम पे नहीं हो सकता है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है रोबस्ट का। और इसके डेफिनेटली आई जस्ट टोल्ड यू कि 1992 के बाद जितनी भी लैंग्वेज बनी उन्होंने जावा के कंसेप्ट को ही फॉलो किया है। सो इन एवरी लैंग्वेज यू कैन फाइंड दिस फीचर दैट इज रोबस्ट। बट वही बात होती है, अगर आप जावा से स्टार्ट करते हो, बिकॉज जो भी कोर कंसेप्ट बने वो जावा में बने, फिर बाकी आगे जो आप लैंग्वेज सीखते हो, दे आर दी शॉर्टकट्स, मतलब उन्होंने इसी का यूज करके उन्होंने कुछ शॉर्टकट्स बनाए हैं। सो ओके, वो भी चीज कवर करेंगे। अच्छा, किसी ने सी लैंग्वेज पढ़ा है आपने, सी लैंग्वेज? Yes, sir. यस सर। ये सी लैंग्वेज किसको पता है? Yes, sir. यस सर। ओके, सो सी लैंग्वेज में एक कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर्स का, कभी आपने सुना पाइथन में पॉइंटर्स हैं, कभी आपने सुना कि जावा में पॉइंटर्स हैं, या फिर कोई भी लैंग्वेज अभी हम जब सीखते हैं, अब कहीं आपने पॉइंटर के नाम सुने हैं? नहीं। सी और सी प्लस प्लस में पॉइंटर नाम के चीज टॉपिक्स थे जो बड़े पॉपुलर थे, जो एक मेमोरी एड्रेस को होल्ड कर सकते हैं। अभी तो रेफरेंस आ चुका है उसके जगह पे नाम। क्या करता था, एक एड्रेस होल्ड करके रखता था, और उस एड्रेस पे मतलब अगर कुछ इस तरह की अगर मैं कोडिंग करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपको पता है कि अगर मैं इंटीजर ए स्टोर करता हूँ और इसके अंदर कुछ 5 वैल्यू स्टोर करता हूँ, बराबर है, तो अगर मैं एक पॉइंटर वेरिएबल बनाता हूँ स्टार पी, ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ पी इज गोइंग टू बी होल्ड द एड्रेस ऑफ, पी इज गोइंग टू बी होल्ड द एड्रेस ऑफ ए, मतलब अभी क्या कर रहा है, पी का ए का कंट्रोल जो भी है किसके पास आ चुका है, पी के पास आ चुका है। सो अगर मैं बोलूँ कि स्टार पी प्लस प्लस, मतलब अभी मेरे पास ए का एक्सेस पूरा आ चुका है। सो वट एवर जो मैं पी के साथ एक्शन कर रहा हूँ डेफिनेटली किसके साथ होने वाला है, ए के साथ होने वाला है। आपको पता है स्टार पी प्लस प्लस का मीनिंग क्या होता है? आप स्टार पी को क्या समझते हो, वैल्यूज, राइट, और उसकी वैल्यू आप एक से बढ़ा रहे हो, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, अभी 6 हो जाएंगी ना। सिमिलरली इफ यू आर गोइंग टू डू लाइक पी प्लस प्लस, तो डेफिनेटली एड्रेस ऑफ द ए आल्सो इंक्रीमेंटेड बाय 4 बाइट्स, मतलब क्योंकि ए की साइज 4 बाइट है, सो ये अभी 4 बाइट से क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब किसी ने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा कि 2 बाइट्स का होता है सी इंटीजर, तो 16 बिट आर्किटेक्चर में होता है। अभी हम सारे लोग 32 बिट यूज करते हैं डेस्कटॉप पे, या फिर लैपटॉप पे 64 बिट यूज करते हैं, तो वहाँ पे इंटीजर का साइज कितना होता है, 4 बाइट होता है। सो जब पी प्लस प्लस करते हो आप, यस, तो आप क्या कर रहे हो, ए को क्या कर रहे हो, 4 से एड्रेस से इंक्रीमेंट कर रहे हो, मतलब ए का जो पोजीशन था उसके ओरिजिनल पोजीशन से 4 आगे चले जाएगा। मतलब एक बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे ही ए का कंट्रोल पी के पास आ गया, ये सारे काम मतलब ए के साथ जो भी आप चीजें करते थे वो आप सारे पी के थ्रू कर रहे हो, मतलब यहाँ पे हम क्या करें, पूरा एक्सेस पी को दे दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एक इशू था, इशू मतलब हम बोलते हैं सिक्योरिटी इश्यूज था। अगर किसी का भी एड्रेस हम होल्ड कर सकते हैं तो फिर वो चीज़ उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, नल भी कर सकते हैं, या फिर उसको चेंज भी कर सकते हैं। सो लेटर ऑन द सी प्लस प्लस, मतलब फ्रॉम द जावा ऑनवर्ड्स, ये पॉइंटर का कंसेप्ट बंद हो गया और ये चीज़ें हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। आई गेस सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस में आपने गो टू वर्ड भी देखा होगा, गो टू एस। आप किसी भी स्टेटमेंट के पास कहीं पे भी कोई भी सिचुएशन में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते थे, कहीं पे भी विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी लॉजिक, आप कहीं पे भी, मतलब ये अगर सेकेंड लाइन है तो ये अगर आपकी 10th लाइन है, तो अगर आप एस डॉट लिख दोगे तो आप इस स्टेटमेंट पे आप डायरेक्टली आ सकते हो। तो ये जो लॉजिक्स थे, ये जो चीजें थी सी सी प्लस प्लस में,
वो जावा ने रिड्यूस कर दी, निकाल दी, और इसीलिए जावा एक सिक्योर्ड लैंग्वेज माना गया, ठीक है। जावा क्या था, एक सिक्योर्ड लैंग्वेज माना गया, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जावा एक क्या है, कंप्लीट लैंग्वेज है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एप्लीकेशंस की, अभी ये तो ठीक है, थोड़ा बेसिक तो हो गया कि जावा में हमने, अगर इसका मुझे समराइज करना है इसको कि हमने क्या देखा, कि जावा क्या था, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज था। बिकॉज ऑफ दिस जावा बिकम सो पॉपुलर, ओके। और हमने कुछ चीजें इंपॉर्टेंट देखी कि जावा इंडिपेंडेंट कैसे हैं, और वाई द अदर लैंग्वेजेस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो उसके बाद हम कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं जावा के, कौन से थे। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, डेस्कटॉप जीयूआई होता है, इंटरप्राइज होता है, साइंटिफिक, वेब बेस्ड, क्लाउड बेस्ड, गेमिंग। मतलब इनडायरेक्टली इतने करियर आप क्रिएट कर सकते हो बाय लर्निंग द जावा। बट बिफोर दैट, these are all the application based, these are the all the application based. Before that I will suggest you to learn core java first. Before that I will suggest you to learn core java first. What do you mean by core java? What do you mean by core java? It's nothing but J2 SE, Java स्टैंडर्ड एडिशन, ओके। जावा स्टैंडर्ड एडिशन मतलब फंडामेंटल्स ऑफ जावा, जो यूजुअली सिलेबस में होता ही है, आपको भी होगा कहीं ना कभी तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है, कौनते ना कौनते सेमिस्टर में। तो ये लैंग्वेज है, ये पहले आपको फंडामेंटल सीखना है। सो यू कैन चूज योर पाथ टू एनी ऑफ दिस फील्ड, मल्टीपल पाथ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये आप करियर इतने फील्ड में आप क्रिएट कर सकते हो। सो इसको थोड़ा अगर डिटेल में जानना है कि डेस्कटॉप जीयूआई मतलब क्या होता है, मोबाइल एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, तो अभी सभी को पता है, जितने भी हम एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहे हैं, राइट, एंड्रॉयड मोबाइल यहाँ पे लिखा भी है कि जितने भी हम अभी एंड्रॉयड मोबाइल्स यूज कर रहे हैं, इसके लिए जो लैंग्वेज बनी है, मतलब एंड्रॉयड लैंग्वेज या फिर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं, ये कौन सी लैंग्वेज में बनी है, जावा में बनी है, बराबर है। अभी इसी जावा का एक लेटेस्ट वर्जन आया है, कौन सा, कॉटलिन। कौन सा आया, कॉटलिन, ये भी जावा से ही बनी है। सो अगर आप चाहते हो कि मुझे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में करियर बनाना है और मुझे एक अच्छा मोबाइल ऐप डेवलपर क्रिएट करना, मोबाइल ऐप बनाना है, सो फॉर दैट यू कैन लर्न दिस जावा। बट अगेन द सेम फॉर दैट कि आप पहले कोर जावा पढ़िए, फिर कोर जावा के बाद आप एंड्रॉयड सीख सकते हो, ठीक है, ओके। इसके लिए कौन कौन सी चीजें सीखनी होती है, क्या क्या प्री रिक्वेस्टेड होती है, एक रोड मैप क्या होता है, ये सब मैं लेटर स्लाइड में आपको बताता हूँ, ठीक है। नाउ देयर इज अनदर करियर इन जावा लाइक डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशन, ओके। सो डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे अभी ये मैं पावर पॉइंट आपके सामने, पावर पॉइंट मैंने ओपन किया है, एक माइक्रोसॉफ्ट टीम के सॉफ्टवेयर थ्रू अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक कैलकुलेटर होता है, एक नोटपैड कैलकुलेटर, जो भी टू डू टास्क लिस्ट, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम डेस्कटॉप पे यूज करते हैं। वो जो हम बनाते हैं वो भी किससे बनाते हैं, हम डेस्कटॉप, वो भी हम बनाते हैं बाय यूजिंग जावा। उसके लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होती है, जो यहाँ पे नोट डाउन भी की है, दैट इज स्विंग क्लास। यस, स्विंग क्लास, ये आप पढ़ोगे क्या होता है जावा में, तो उसके लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि जब आप स्विंग क्लास आपके सिलेबस में आएगा, तो आप देखोगे कि एक, मतलब जैसे अभी इसमें कोई मैं चेंजेस करता हूँ, तो हमको ये कोई तो भी पॉपअप आता है, डू यू वांट टू सेव दिस प्रोग्राम वगैरह वगैरह, ये कुछ एक पॉपअप आता है। तो ये जो होता है ग्राफिकल बेस है, मुझे कुछ कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी कि डोंट सेव वगैरह या सेव कीजिए, ऐसी कोई कमांड लिखने की जरूरत नहीं, ये सब ग्राफिकल बेस है। तो ऐसे ग्राफिकल बेस्ड जब भी आपको जीयूआई बनाना है या फिर ग्राफिकल बेस्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने हैं, तो यू कैन आल्सो डू बाय यूजिंग जावा। उसके लिए आपको स्विंग क्लास सीखना होता है, और ये सभी का छठवां यूनिट होता है, अगर सिलेबस में अगर आपको होता है तो AWT, ये आपका छठवां यूनिट होता है। तो वहां पे भी आप देखोगे कैसे आप ये जीवा एप्लीकेशन को बना सकते हो। बट सिलेबस में जो होता है बेसिक लेवल पे होता है, अगर ये अच्छे से आपको जावा आ जाता है तो फिर इसी को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए खुद से ही, ठीक है। ओके, वेब बेस्ड सभी को पता है, वेब बेस्ड वेब डेवलपमेंट ये सभी को पता है। वेब डेवलपमेंट में यहाँ पे लिखा तो है कि आप JSP वगैरह यूज कर सकते हो, सर्वलेट यूज कर सकते हो, स्ट्रट यूज कर सकते हो, हाइबरनेट होता है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके थ्रू आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। बट बेसिकली वेब डेवलपमेंट, आप अगर आपको पता है वेब डेवलपमेंट के कितने पार्ट्स आते हैं, दो पार्ट्स आते हैं, एक आता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट और एक आता है बैक एंड डेवलपमेंट। अब मुझे बताइए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा होता है, फ्रंट एंड या बैक एंड, आपके हिसाब से क्या आपको लगता है? एक्चुअली दोनों ही होते हैं, आई नो दैट, दोनों भी आप बोल सकते हो। बट अगर मैं कंपेयर करूं कि फ्रंट एंड मतलब एक लुक, फ्रंट एंड मतलब क्या, जैसे फॉर एक्झाम्पल कोणाचं घर आपण पाहतो, जेव्हा
जब हम रास्ते से जाते हैं, किसी का घर हमको बाहर से दिखता है कि कितना जबरदस्त है, तो ऑटोमेटिकली हम क्या प्रेडिक्ट कर लेते हैं, यस ऑटोमेटिकली हम क्या प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि अंदर भी घर जबरदस्त होगा, अंदर भी बहुत बड़ा फर्नीचर या बहुत एक बढ़िया भी आर्किटेक्ट वर्क किया होगा। ऐसा हम डायरेक्टली इमेजिन कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं बाहर से देखने के बाद ही। उसी तरह से फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होगा? फ्रंट या सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ना व्हाट डू मीन बैक एंड डेवलपमेंट एंड व्हाट डू मीन बाय दिस सर्वलेट एंड स्ट्रट एंड जेएसपी? तो बेसिकली जब हम बैकएंड की बात करते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप ये यूज करते हो, फेसबुक वगैरह यूज करते हो, या फिर कोई डेटाबेस के थ्रू, डेटाबेस से लिंक होने वाली कोई वेबसाइट आप चेक करते हो, जहाँ पे कोई वेब पेज आपको कुछ इंफॉर्मेशन मांगता है, एंटर योर नेम, एंटर योर रोल नंबर, एंटर योर जो भी है, कुछ आपसे डिटेल मांगता है, फिर आप सबमिट करते हो, रजिस्टर करते हो, स्कॉलरशिप का फॉर्म हो गया जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन फिलअप करते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाती है? यस, फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे fb.com की वेबसाइट है फॉर एग्जाम्पल, तो ये वेबसाइट पे जाने के बाद आप कोई फॉर्म फिलअप करते हो, ये फॉर्म फिलअप करने के बाद ये डेटा कहाँ पे जाता होगा? जो भी आपने डेटा एंटर किया है इन fb.com के डेटाबेस में जाता है, बराबर है? कहाँ पे जाता है? डेटाबेस पे। ना लाइकवाइज आप कोई वेबसाइट यूज कर रहे हो जो जावा से बनी है, और वो आपसे कोई वेबसाइट, अच्छा कैसे पहचानोगे आप कोई वेबसाइट जावा से बनी है नहीं बनी है? तो उसके आखिरी में आपको वर्ड दिखेगा .jsp, जावा सर्वलेट पेजेस। ओके, सो यू विल सी एन एक्सटेंशन लाइक JSP। सो आप जरूर देखिए, और जब वो आपसे पूछता है कि नहीं हमको ये कुछ आप इंफॉर्मेशन फिलअप कीजिए, फिर आप इसको सबमिट कीजिए, तो ये डेटा जो होता है आप डेटाबेस में जाता है। डेफिनेटली जावा यूजेस ओरेकल फॉर डेटाबेस। जावा किसका यूज करता है डेटाबेस के लिए? ओरेकल का यूज करता है। सो ओरेकल में आपका डेटा जाएगा, और ये लाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है वहां पे लेके जाने के लिए? सर्वलेट होता है। कौन होता है? सर्वलेट, स्ट्रट और JSP। अच्छा, मतलब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पूरा बैकएंड के लिए। इसके लिए काम कशासाठी असतं? पूर्ण बॅकएंड साठी करताय का? बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट फ्रंट एंड एंड बैक एंड, front end development and back end development, okay, you can use you can use this fixed language for front end, जैसे HTML से आप start कर सकते हो। if you are talking about web based application, तो आप यही language का आप use करोगे। there are no alternate language for this। आप HTML और CSS का यूज कर सकते हो। अब इसका GUI, मतलब मैंने जैसे बताया कि फ्रंट एंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर फ्रंट लुक अच्छा है तो आप वैसे ही आप समझ सकते हो, कोई भी जो यूजर होता है जो आपकी वेबसाइट को विजिट करता है, वो ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट कर लेता है कि ये वेबसाइट जबरदस्त है, बढ़िया फीचर्स हैं। तो ये तो बेसिक कंटेंट डिस्प्ले करवा देते हैं। इसके अलावा आप चाहते हो कि वेबसाइट और भी अच्छी दिखे, बहुत बढ़िया दिखे, तो इसके लिए आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव लैंग्वेज दैट इज बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हो। अगर आपको वैलिडेशन देने हैं, आप jQuery यूज कर सकते हो, और ये सब लैंग्वेज का यूज करके आप एक बढ़िया एक लुक बना सकते हो आपके वेब पेज का। तो दिस आर द फ्रंट एंड लैंग्वेजेस। यस, jQuery लिखा या जावास्क्रिप्ट, वन ऑफ द सेम थिंग। ये लाइब्रेरी होती है जावास्क्रिप्ट के लिए, jQuery। ओके, सो ये लैंग्वेजेस होती हैं जिसका यूज करके आप एक अच्छा लुक डिजाइन कर सकते हो। जब हम बैकएंड की बात करते हैं, व्हाट डू मीन बैकएंड? अब जैसे HTML का यूज कर मैंने कोई फॉर्म बनाया है, HTML का यूज करके कोई फॉर्म बनाया है, मुझे कहाँ पे लेके जाना वो डेटा? यस, आई वॉन्ट टू स्टोर दैट डेटा ऑन टू द ओरेकल डेटाबेस। तो ये जो बीच का जो इंटरफेस होता है, यहाँ का डेटा मुझे ओरेकल में स्टोर करना है। सो ये कौन करके देता है? यस, हाउ दिस मेड पॉसिबल? सो बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेजेस लाइक सर्वलेट एंड स्ट्रट्स एंड JSPs। समझ आता है का? Yes, are you getting my point? Yes, sir. ओके फाइन। सो ये कुछ वेब डेवलपमेंट के कुछ लैंग्वेजेस थी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो मोबाइल वेब एप्लीकेशन वैसे भी बहुत लोगों को पता ही होता है, ठीक है, तो इसका यूज भी आप कर सकते हो। मतलब डेटाबेस में अगर आपको इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो यू कैन यूज दिस लैंग्वेजेस सर्वलेट, स्ट्रट एंड JSPs। ना व्हाट इज माय एंटरप्राइज एडिशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जॉब नहीं मिलता है एंटरप्राइज एप्लीकेशन, यहाँ पे फ्रेशर को जॉब नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जब एंटरप्राइज एप्लीकेशन की बात आती है,
एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? एक बड़ी कंपनी है। एंटरप्राइज एक बड़ी कंपनी है जिसकी आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, जैसे फेसबुक एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इंस्टाग्राम एक बड़ा प्रोजेक्ट है, अभी बायजूस एक बड़ा प्रोजेक्ट है। एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन जहाँ पे पूरा एंटरप्राइज के उसी ऐप पर डिपेंडेंट होता है। फेसबुक का पूरा प्रोडक्ट उस facebook.com पे ही डिपेंडेंट होता है। तो ऐसे जब एप्लीकेशन जब आप बनाते हो, इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए रिक्वायर्ड होता है एक्सपीरियंस। 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करना ही पड़ता है। बट अगर आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन में चले जाते हो, बराबर है, अगर अच्छा आपको जावा का 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है, फिर जो आपका सैलरी भी होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो इसके लिए कुछ अलग रिक्वायरमेंट होती है क्या? तो बिल्कुल नहीं, मैं वही बताऊंगा। जो आपका वेब डेवलपमेंट है वही आपको स्ट्रॉन्ग करना है, वही आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो जाके उसी को आप एडवांस कर सकते हो इनटू दी एंटरप्राइज एप्लीकेशन। तो ये कुछ नहीं होता। इमेजिन कीजिए, यहाँ पे मैंने ओरेकल की बात की, मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस की बात की, यहाँ पे हमारे पास लाखों डेटाबेस होती है। इमेजिन कीजिए कि 1 सेकंड में, और वी कैन रादर से 1 मिनट के अंदर 32 पीबी डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? आपका यूट्यूब पे स्टोर होता है। इफ यू एवर सर्वे ऑफ दिस, अगर आपने सर्वे किया है, 32 पीबी डेटा, मतलब पीबी अगर आपको पता है, टेराबाइट के बाद क्या आता है? जेटोबाइट आता है, और उसके बाद आता है पिकोबाइट, ठीक है। सो ये जो डेटा है, इतना डेटा आप कहाँ पे स्टोर करते हो? यूट्यूब पे स्टोर करते वो 1 मिनट के अंदर। तो इमेजिन कीजिए कितनी हार्ड डिस्क उनकी कंज्यूम होती होंगी। तो जैसे एक हार्ड डिस्क एक हार्ड डिस्क अगर हो जाता है कंप्लीट, तो दूसरे हार्ड डिस्क में डेटा आपका शिफ्ट हो जाता है। दूसरे में दूसरा हो गया तो फिर तीसरे में डेटा आपका स्टोर होता है। तो ये जो होता है, ये एंटरप्राइज एप्लीकेशन से रिलेटेड है पूरा। तो उसमें बहुत जबरदस्त बिग डेटा, आपका क्लाउड आर्किटेक्चर, वो सब आपको नॉलेज उतना होना चाहिए। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे कंपलसरी होता है। साइंटिफिक एप्लीकेशन मतलब जैसे मैटलैब वगैरह होता है, प्लॉट्स वगैरह बनाना है, एनालिसिस करना है, ठीक है। उस तरह से आप यहाँ पे ये एप्लीकेशन होता है किसका? जावा का। उसके बाद आप गेम वगैरह बना सकते हो जावा से। आई विल गिव अ समराइज कि आप कौन से लैंग्वेज का यूज, आप किस लैंग्वेज मतलब किस एप्लीकेशन के लिए बेटर कर सकते हो। मतलब एक जावा, अभी यहाँ पे देख रहे हो आप कि जावा एक कंप्लीट लैंग्वेज आपको यहाँ पे दिख रही है। मतलब ऐसा कोई भी एक फील्ड नहीं है जहाँ पे जावा यूज नहीं होता है। आप मोबाइल के लिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए, वेब बेस के लिए, एंटरप्राइज के लिए, साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए, गेमिंग एप्लीकेशन के लिए, गेम्स के लिए कौन सा यूज कर सकते हो आप, ये सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इफ यू वांट यू कैन टेक द स्लाइड्स फ्रॉम मी, आप इससे ले सकते हो, आप इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। सो बिग डेटा टेक्नोलॉजीज, जब मैंने अभी बताया आपको कि इतना डेटा स्टोर होता है फेसबुक के अंदर, यूट्यूब के अंदर, तो कैसे ये डेटा मैनेज होता है? तो देयर आर टेक्नोलॉजीज लाइक हडूप विच कम अंडर बिग डेटा। बिग डेटा को सपोर्ट करने के लिए हडूप होता है, स्काला होता है, बहुत सारे लैंग्वेजेस होती है, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। अब ये जो है, दिस आर मेड और दिस आर रिटर्न इनसाइड दी जावा. Java is the reason why leading big technologies like Hadoop have become reality, and also most powerful programming language like Scala are existing. मतलब जो भी हम Scala वगैरह यूज करते हैं, Hadoop वगैरह यूज करते हैं, इतना डेटा, यस, इतना बड़ा डेटा मैनेज करने के लिए, इतना डेटा स्टोर करने के लिए, वो सारे जो ये सारे जो ये टूल्स हैं, या Hadoop या Scala है, ये किससे बने हैं? जावा से बनी है। तो अगर आप देखते हो कि अगर आप जावा सीख लेते हो तो कितने सारे करियर के ऑप्शन आपके सामने ओपन रहते हैं। ओके, तो इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन मतलब क्या होता है? इमेजिन कीजिए आप एक रूम में बैठे हो, वहां पे 50 कंप्यूटर हैं, एक एक हॉल में बैठे हो, वहां पे 50 कंप्यूटर्स लोकेटेड हैं, और वहां पे क्या करना चाहते हो आप? कोई तो भी डेटा एंट्री का काम कर रहे हो। डेटा एंट्री का मतलब कुछ तो भी आप डेटा फिल कर रहे हो, जिसका सर्वर एक ही होता है, जिसका सर्वर एक ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सर्वर रूम होगा जहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, 50 के 50 लोग का डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है? वो एक ही सर्वर पे स्टोर हो रहा है, एक ही कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है। तो ये टाइप के जो प्रोग्राम होते हैं, ये टाइप के जो एप्लीकेशंस होते हैं, इसी को नॉर्मल लोग सॉकेट लेयर प्रोग्रामिंग बोलते हैं जावा में। सॉकेट लेयर प्रोग्रामिंग, राउटर लेवल प्रोग्रामिंग, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस बोल सकते हो। कि क्या हो रहा है यहाँ पे? एक ही प्रोग्राम 50 लोग एट ए टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और एक ही जगह पे डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है, ये टाइप के सॉफ्टवेयर भी हम कैसे बनाते हैं, किससे बनाते हैं? जावा का यूज करके बनाते हैं, ठीक है। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू बी डीप। एक्चुअली सास क्या होता है, क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर भी हम कैसे जावा के थ्रू बना सकते हैं। सो बस अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे ये बनाना है कि एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं जावा के, इतने सारे जगह पे आप जावा को यूज कर सकते हो।
सो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही आती है कि करियर क्या होता है जावा में, करियर क्या होता है, कैसे हम इसमें करियर बना सकते हैं सर, क्या क्या सीखना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इफ़ यू हैव चूजन वन प्लेटफॉर्म, जैसे अगर आपने डिसाइड किया कि सर मुझे मोबाइल में जाना है, मोबाइल एप्लीकेशन में जाना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी होती है। तो अपार्ट फ्रॉम द कोर जावा, फंडामेंटल ऑफ जावा जैसे आप कंप्लीट कर लेते हो सिलेबस के थ्रू, तो आप फिर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख सकते हो बाय यूजिंग दिस थ्री थिंग्स, ठीक है। एंड्रॉइड स्टूडियो जो आपको डाउनलोड करना होता है, एक आईडीई होता है, एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करके देता है जहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हो। एक इम्यूलेटर, इम्यूलेटर मतलब जैसे आपका मोबाइल, वहाँ पे आप रियल में देख सकते हो कि अगर आपने कोई टाइप किया तो आप कैसे ये मोबाइल के अंदर दिखेगा, तो इम्यूलेटर के थ्रू आप वो भी देख सकते हो। और यूजर इंटरफेस डिजाइन, और ये आपको आना चाहिए, मतलब आप कैसे डिजाइनिंग कर सकते हो जावा के थ्रू, ये भी आपको वहाँ पे आना चाहिए। सो दिस आर द थ्री रिक्विजिट फॉर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, जिसके लिए आप पढ़ सकते हो। उसी के साथ वेब डेवलपमेंट अगर आपको पढ़ना है, तो वेब डेवलपमेंट में जैसे अभी मैंने बताया कि देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द वेब डेवलपमेंट, वन इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड अनदर वन इज, यस, अनदर वन इज अ बैक एंड डेवलपमेंट, राइट। सो फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं, तो वहाँ पे तो अलग लैंग्वेजेस होती है, दैट आर दी कॉमन, यहाँ पे लिखा भी है, डेवलपर मस्ट नो द बेसिक ऑफ HTML और CSS एंड APIs। APIs मतलब एप्लीकेशन पेरिफेरल इंटरफेसेस, लाइक जैसे बूटस्ट्रैप है, jQuery है, एंगुलर जेएस है। सो दिस आर दी फ्रंट एंड लैंग्वेजेस जो आपको आनी चाहिए लुक बनाने के लिए। बट जब बात आती है डेटाबेस डेवलपमेंट की, मतलब जब हम कंप्लीट वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें होंगी वेब पेज के अंदर जो आपको डेटाबेस में भी स्टोर करनी होंगी। तो सिंपली दिस फ्रंट एंड लैंग्वेजेस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द डेटा इनटू द डेटाबेस, ये नहीं होता है रिस्पॉन्सिबल, ये नहीं होता है। इसके लिए हमको कुछ सर्वर साइड लैंग्वेज सीखनी होती है, और सर्वर साइड लैंग्वेज जावा इज वन ऑफ द सर्वर साइड लैंग्वेज among the variety of the languages we have in the market. So उसके लिए आपको मैंने बताया जैसे सर्वलेट सीख सकते हो, और जावा सर्वलेट पेजेस, सर्वलेट और JSP आप ये सीख सकते हो। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, आप फ्रंट एंड का डेटा डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। सो वेब डेवलपमेंट में भी आप करियर अगर आपको करना है, तो आप सर्वलेट और जावा सर्वलेट पेजेस, मतलब दोनों में से कोई भी आप एक चीज सीख सकते हो। मैंने एक दो नाम आपको पहले ही बताए, आप स्ट्रट्स सीख सकते हो, स्ट्रट्स सीख सकते हो, उसके आप हाइबरनेट सीख सकते हो, ठीक है। और इन द लास्ट स्लाइड आई विल समराइज ऑल द पार्ट्स, ऑल द थिंग्स कि आप कैसे जाओगे शॉर्टकटली, मैं सब चीज़ें आपको क्लियर करूंगा। स्ट्रट्स और हाइबरनेट भी आप सीख सकते हो, इसके अलावा स्प्रिंग भी होता है, ठीक है। ये भी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में जिसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ डेस्कटॉप जियो एप्लीकेशन एज अ स्टेटेड अर्लियर, इसके लिए आपको स्विंग क्लास सीखना होता है, और आपको AWT क्लास का नॉलेज होना चाहिए, बोथ द यूज ऑफ AWT दिखा है आपको। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, स्विंग क्लास आप अगर देखोगे मार्केट में या फिर आप अमेजोन में चेक करोगे, तो बढ़िया किताब है स्विंग क्लास से रिलेटेड, वो आप परचेस कर सकते हो। अदरवाइज आप यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हो कि स्विंग क्लास से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं जिसपे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप जावा के थ्रू बना सकते हो। तो इफ़ यू आर क्लियर अबाउट कि मुझे जावा सीखना है, बट इससे सबसे इजी कौन सा है, मतलब गेम बनाना सर इजी है, मोबाइल एप्लीकेशन बनाना इजी है, वेब एप्लीकेशन बनाना इजी है, मतलब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ सो दैट मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अच्छा हो। सो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशन, दिस इज द वेरी इजिएस्ट पार्ट, वेरी इजिएस्ट पार्ट। कुछ क्लासेस आपको ध्यान में रखने होते हैं, देयर आर नो लॉजिक बिहाइंड दैट, मतलब इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता है। जैसे यहाँ पे डिजाइनिंग का पार्ट आता है कि कैसे आपको एप्लीकेशन को डिजाइन करना है। जब हम बात करते हैं अदर चीज की, जब वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं या फिर जब अलग डोमेन की बात करते हैं, वहाँ पे कुछ लॉजिक्स आपको डिफाइन करने होते हैं। और यहाँ पे जस्ट आपको यू हैव टू रिमेंबर द क्लासेस इन जावा, उसी का यूज करके आप एक एप्लीकेशन बढ़िया बना सकते हो, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग फॉर दिस एंटरप्राइज एप्लीकेशन, ये बताया मैंने आपको कि सर्वर साइड के कुछ पेजेस आप वेब पेज पे दिखा सकते हो, यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखा होता है, EJP एंटरप्राइज जावा बिन, एंटरप्राइज जावा बिन, ओके, जहाँ पे आपका पूरा डेटाबेस पूरा स्टोर होता है, और ये डेटाबेस आपके फाइनली कहाँ पे चल जाता है, एक डेटा फाइनल डेटाबेस में चले जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखा रहता है जो एग्जीक्यूट होता है। सो वो भी बात ठीक है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन भी आप कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या सीखना होता है मैंने बताया,
जस्ट आप क्या करो, 5-6 साल कोई भी एक वेब डेवलपमेंट में आप अच्छा एक एक्सपीरियंस ले लीजिए, आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी, ठीक है, कि ये कैसे काम करता है। गेम डेवलपमेंट के लिए आप दो चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट डाउन की हैं, एक ये चीज़ लर्न लिब GDX और एक दूसरी चीज़ है LWGBL, ठीक है। आप ये दो चीज़ें आप सीख सकते हो अगर आपको जावा में गेम बनाने हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो फाइनली व्हाट द कंक्लूजन इज, यस, फाइनली इज व्हाट द कंक्लूजन इज कि इतने सारे करियर ऑप्शन है, डेस्कटॉप जीओ एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, यस, गेम डेवलपमेंट है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, मतलब ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें आप जावा को यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और जावा एक स्टेबल लैंग्वेज है, स्टेबल मतलब जितना भी इन्वेंशन करना था, जितनी भी चीजें बनानी थी वो सारी चीजें बनी हैं। बहुत सारी बड़ी कम्युनिटी है, अगर आप कहीं फेल हो जाते हो, कहीं अगर आपको चीजें प्रॉब्लम दे रही है, तो बहुत लोग अभी जावा एक्सपर्ट है मार्केट में जो आपको हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कंपेयर टू द न्यू लैंग्वेजेस, ठीक है। नाउ व्हाट आर द पोस्ट यू विल हायर इफ यू आर जावा डेवलपर। तो जब आप स्टार्टिंग में जब आप जावा सीखते हो, अगर आपको बेसिक वेब एप्लीकेशन बनाते आता है जावा के थ्रू, या फिर अगर आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते आता है, तो फिर द पोस्ट यू विल गेट एज अ जूनियर डेवलपर, ठीक है। इसकी सैलरी कितनी होती है वो सारे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में रखी है। तो जूनियर डेवलपर का काम क्या होता है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि एक सबसे लोएस्ट पोजीशन होती है किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पोस्ट में, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं, कोड लिखना होता है, टेस्ट करवाना होता है, और वो काम कैसे करता है वो आपको जस्ट, यस, वो आपके किसी टीम को आपको बताना होता है। एक टीम आपको एक कोई तो भी एक टीम के अंदर आप काम करते हो, यू आर द पार्ट ऑफ द टीम, और आपको एक सीनियर डेवलपर आपको कोई टास्क देता है, उसके लिए अल्गोरिदम्स बनाने बोलता है, या आपको डिजाइन बनाने के लिए बोलता है कि कैसे प्रोजेक्ट बनाए, कैसे कहाँ से डेटा आपका जाना चाहिए। तो ये होता है डेवलपर का काम, जो फिर उसके छोटे छोटे मॉडल्स पे वो काम करेगा, छोटे छोटे मॉडल्स पे वो काम करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, तो ये छोटे छोटे जो मॉड्यूल्स होते हैं जो इंडिविजुअल पर्सन बनाता है, फिर बाद में बाय यूजिंग द जार कंपोनेंट इन द जावा, दिस इज यूज फॉर एग्रीगेशन ऑफ द फाइल्स एंड मेटाडेटा इनटू वन फाइल। तो जब छोटे छोटे मॉड्यूल्स सारे लोग बना लेते हैं, टीम मेंबर के बना लेते हैं, तो फिर क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस जार के अंदर हम कॉमा देकर हम एक साथ सारे फाइल को कंपाइल कर सकते हैं, सारे फाइल को हम एक साथ कंपाइल कर सकते हैं, और उसकी एक सिंगल क्या बनेगी, फिर exe फाइल बनेगी। तो बिकॉज ऑफ द जार कंपोनेंट, ठीक है। तो इतना डिटेल में नहीं जाते, बस इतना समझिए कि अगर छोटे छोटे मॉड्यूल सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, तो फिर वो कंबाइन कैसे होता है, तो वो भी चीजें आप जावा में देख सकते हो जार के थ्रू, ठीक है। नाउ देयर इज अ सीनियर डेवलपर का काम क्या होता है, ये एक सीनियर होता है, एक टीम लीडर होता है, जो क्या करता है, सी जूनियर डेवलपर्स को ऑर्डर्स देता है। ऑर्डर से बेटर है कि वो खुद ही मैक्सिमम पार्ट कर लेता है प्रोजेक्ट का, क्योंकि उसी को पता होता है कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, और जो मैक्सिमम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है प्रोजेक्ट का, वो सीनियर डेवलपर ही बनाता है। और जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं वो टीम मेंबर्स में, मतलब जूनियर डेवलपर्स के थ्रू वो सर्कुलेट कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है दैट इज आर्किटेक्ट का। आर्किटेक्ट ये बड़ा, या आर्किटेक्ट या बोल सकते हो, या फिर इसको हम बोल सकते हैं, इसके लिए कौन सा नॉलेज सबसे बेस्ट होता है, दैट इज अल्गोरिदम्स। अगर ये बंदा जिसका डेटा स्ट्रक्चर जबरदस्त होना चाहिए, अगर आप लगता है कि एक प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, एक बड़ा हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसका डिजाइन कैसे बनेगा, कैसे इफिशिएंट होगा, कैसे वो टाइम कम लेगा, कैसे वो फास्टर एग्जीक्यूट होगा, कैसे उसकी कॉस्ट कम से कम रहेंगी, ये सारी चीजें डिपेंडेंट होती है किसी अल्गोरिदम पे। आपका जितना अल्गोरिदम फ्लेक्सिबल है, जितना इफिशिएंट है, उतनी ही आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट सबसे ज्यादा होंगी। तो एक आर्किटेक्ट ऐसा बंदा होता है जिसको अल्गोरिदम्स का, डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज जबरदस्त होता है, उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन्स क्रिएट करते आते हैं अलग अलग, जिससे कस्टमर फुल सेटिस्फाई हो कि ये प्रोजेक्ट जो बना है वो स्मूथली वर्क कर रहा है, एक अच्छी स्पीड पे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली आर्किटेक्ट मेक श्योर करता है, और फिर आर्किटेक्ट सीनियर डेवलपर से कम्युनिकेट कर प्रोजेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करके देता है। देन जावा वेब डेवलपर, ये मैंने बताया आपको जावा वेब डेवलपर के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है। आपको कोई भी एक सर्वर साइड लैंग्वेज सीखनी होती है, जैसे सर्वलेट की बात अगर करते हैं, तो अपार्ट यस यस along with the front end development you should know back development, और back end development के लिए अगर आप जावा के थ्रू करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सर्वलेट आना ही चाहिए। मैंने 3-4 नाम बताया आपको, सर्वलेट, देन हाइबरनेट, स्प्रिंग, स्ट्रट्स,
जावा सर्वलेट पेजेस JSP का यूज कर सकते हो, ये सब मैंने बताया, ठीक है। और उसी में अगर आप एक्सपीरियंस हो जाते हो तो फिर आप इंटरप्राइज के लिए भी काम कर सकते हो आफ्टर 5 to 6 ईयर, ठीक है। देन एंड्रॉइड डेवलपर, उसके लिए आप कॉटलिन सीख सकते हो, बट स्टार्ट फ्रॉम जावा फर्स्ट, ठीक है। अगर आप जावा के थ्रू स्टार्ट करते हो सो विल फाइंड कॉटलिन वेरी इजी। कॉटलिन आपको इजी समझेगा। बहुत लोग होते हैं कि शॉर्टकट्स करते हैं, बहुत लोग होते हैं स्टार्टिंग में ML सीख लेते हैं, मशीन लर्निंग सीख लेते हैं, बट यू शुड नो सम बेसिक्स। तो मैं बेसिक्स ही बात कर रहा हूँ आपको कि आप जावा पढ़िए पहले, कोर जावा, फिर आप एंड्रॉइड पढ़िए, और फिर आप लगे तो फिर कॉटलिन की तरफ चाहिए अगर आपको आपका करियर मोबाइल एप्लीकेशन में बनाना है तो, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने बताया, दे आर जनरली पोस्टेड बाय बिग कंपनीज एंड लुक फॉर अ डेवलपर विद सम इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। तो कुछ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए 5 6 साल का। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको मतलब एक्सपीरियंस ही नहीं है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, अगर बड़े प्रोजेक्ट में अगर आपको इन्वॉल्व कर देते हैं तो फिर बाद में प्रॉब्लम्स बहुत आती है। मतलब प्रॉब्लम्स मतलब इन काइंड ऑफ कोड फेल हो जाएगा, या फिर उसको फिर मतलब समझेगा नहीं कि क्या लिखना है, यहाँ पे क्या करना है, गलत कोड अगर लिख देता है तो बड़ा प्रोजेक्ट एक फेल हो सकता है टाइम पर। तो वो अफोर्ड नहीं करते कि एक फ्रेशर या फिर 1 2 साल के एक्सपीरियंस पे किसी को एक बड़े प्रोजेक्ट पे मतलब हैंड ओवर करना उसको, ठीक है। तो ये नहीं होता है। सो यहाँ तक जो था ये करियर्स था, करियर के बारे में मैंने बताया। एप्लीकेशन क्या क्या होता है, कहाँ पे जावा आप यूज कर सकते हो, वो भी मैंने डिस्कस किया एज पर एज दी वेबिनार टॉपिक इज कंसर्न। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, बट ओके नाउ ये तो हो गया जावा की मार्केटिंग, बराबर। एक तरह से मैंने, आप बोल सकते हो कि सर तुम्हें जावा चाहिए तो मार्केटिंग के लिए लिया है, बट टेल मी समथिंग अबाउट पाइथन सर। कि अभी हम तो ये सुन रहे हैं एज अ, मतलब अभी हम जब प्रोग्रामिंग की तरफ जाते तो बहुत सारे लोग पाइथन 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 ही कर रहे हैं। तो जावा अभी यूज नहीं होता है क्या, कि जावा का अभी मार्केट नहीं है क्या? तो आई विल से रादर कि जावा का सबसे मार्केट अभी है। मतलब जावा का अगर अगर हम बोलेंगे कि सबसे ज्यादा जॉब्स कौन से लैंग्वेज में है, तो जावा लैंग्वेज में। अगर हम सबसे बड़ी सैलरी की बात करते हैं तो जावा लैंग्वेज में है। सबसे बड़े एप्लीकेशंस आप किससे लैंग्वेज से बना सकते हो, तो जावा के थ्रू ही बना सकते हो। सो ऑब्वियसली फिर तो जॉब, नंबर ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल इन जावा आर वेरी वेरी लार्ज, ओके। बट जावा में जॉब इजीली मिलता नहीं है, क्यों? क्योंकि जावा का कोड जो है बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसे लोग बोलते हैं। बट वही चीज होती है कि वो डायरेक्टली सीखना चाहते हैं, कि मैं डायरेक्टली डबल ई सीखना चाहते हैं, डायरेक्टली वेब डेवलपमेंट एंड्रॉइड सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये चीजें आपको डिफिकल्ट लगेंगी ही, ये चीज आपको डिफिकल्ट फील होंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सीखना है कोर जावा। और फिर आप कोई आपका एक पाथ डिसाइड कर सकते हो कि मुझे एंड्रॉइड में जाना है, या फिर वेब बेस में जाना है, या फिर एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए जाना है। तो ये आप बाद में डिसाइड कर सकते हो। सो यू विल फाइंड इजी। अगेन कोडिंग या प्रोग्रामिंग कोई भी लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो ये होता है, मतलब उसका जो बोलेंगे हम, वो कितना इजी है वो डिपेंड आपके प्रैक्टिस पे करता है, और आपने कितने प्रोजेक्ट बनाए हैं। 1 या 2 प्रोजेक्ट अगर आप बना लेते हो अपने लाइफ में, एजुकेशन करते करते ही अगर आप बना लेते हो, तो फिर ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो आपको रिक्रूट नहीं करेंगे। यूजुअली ये होता है कि जब हम कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे रिज्यूम में कुछ नहीं लिखा होता है। वो उसका भी मैंने अलग से प्रेजेंटेशन बनाया है, अगर आपको सुनना है तो आप, मैं वो आपको दिखा भी सकता हूँ, ठीक है, कि कैसे रिज्यूम आप डिस्प्ले करवाते हो और कैसे रिज्यूम एक्सपेक्टेड किए जाते हैं। तो वो भी आप दिखा सकते हो किसी कंपनीज के लिए, ठीक है। सो एग्जैक्टली माय पॉइंट इज कि यस, तो जावा का मार्केट बहुत ज़्यादा है, जावा में जॉब बहुत है। अगले 20 30 साल, या फिर जब मतलब मेरी शादी होने के बाद मेरे बच्चे के बच्चे भी हो जाएंगे तो भी जावा का स्कोप रहने वाला है। क्योंकि कैसा होता है, अभी जितनी बड़ी लैंग्वेजेस है, जैसे बिग डेटा की बात करते हैं, इतना बड़ा डेटा बिग डेटा पे स्टोर है, बिग डेटा से रिलेटेड है, बराबर है। तो ये जो प्लेटफॉर्म बने हैं वो जावा के थ्रू ही बने हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, 200 करोड़ के प्रोजेक्ट होते हैं, 400 करोड़ के प्रोजेक्ट होते हैं। ऐसे हो डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये प्रोजेक्टला डिलीट करा आणि पायथॉन मध्ये शिफ्ट करा। तो इतना कोई ये रिस्क नहीं लेता है। तो बड़े बड़े कंपनीज हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट जावा में बनाया है। तो दे नीड अ टेक्निकल सपोर्ट, दे नीड सम डेवलपर्स विच वर्क ऑन जावा ओनली, ठीक है। सो पाइथन क्या है सर, फिर पाइथन क्या है? तो पाइथन बेसिकली प्रोवाइड द सेम एप्लीकेशन, पाइथन भी सेम एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, कुछ छोड़कर मतलब जैसे नेटवर्किंग से रिलेटेड, सॉकेट लेयर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, ये जो
डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब सॉकेट लेयर प्रोग्रामिंग की जब मैंने बात की, नेटवर्किंग की जो मैंने बात की, ये जो एप्लीकेशंस होते हैं ये जावा में, और गेम डेवलपमेंट भी इतने इफिशिएंटली नहीं बनते पाइथन में, ठीक है। सो ये जो होता है जावा में थोड़ा फीचर एडवांस है अगर हम कंपेयर करें पाइथन से। पाइथन इज ग्रोइंग, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये 2020 का चार्ट है। अगर हम देखेंगे तो जावा का जो स्कोप है वो दिन बर दिन कम हो रहा है। यू आर नॉट सीइंग कि ये ड्रास्टिकली पूरा जीरो पे आ चुका है, बट पाइथन का अगर आप देखोगे ग्रोथ जो है बहुत ही ड्रास्टिकली अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। So they are in 5 to 6 years you can see a number of jobs related to Python compared to Java, मतलब Java के कंपेयर में Python के जॉब में भी देर आर वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बट जावा का जो स्कोप है अभी भी स्टिल है, मतलब यू कैन सी दैट कि दोनों का स्कोप ज़बरदस्त है, मतलब जॉब्स जो है बाकी लैंग्वेज के कंपेयर में ये दोनों का बड़ा मार्केट है, बराबर है। तो फिर दोन्ही पण शिकले तर मग सर एकदमच जबरदस्त होऊन जाईल। अगर हम दोनों भी लैंग्वेज सीख लेते तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए आप, ठीक है। एक कोई भी लैंग्वेज परफेक्ट कीजिए। आई एम डैम श्योर कि पाइथन में भी आपको जॉब मिलेगा, जावा में मिलेगा। सो आई विल सजेस्ट कि दोनों में से कौन सा करना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जावा में करियर बनाइए, बराबर है। क्यों? क्योंकि जावा क्या है, एक लॉन्ग कट वे है, बराबर है, मतलब, और पाइथन का बोला गया शॉर्टकट वे है। तो शॉर्टकट वे कब समझेंगे आप कि ये शॉर्टकट है? म्हणजे जर तुम्ही पायथन में वर्क करत है तो कब आप इसको फील करोगे कि ये मैं शॉर्टकट वे से कोडिंग कर रहा हूँ? जब आपको पता है कि ये लॉन्ग कट तरीका कौन सा था, इसको कैसे, इसके पीछे जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है वो कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके पीछे वर्किंग नेचर क्या है इस प्रोजेक्ट का, इसके पीछे कौन सा मतलब लॉजिक रन हो रहा है, ये सब चीज़ें अनअवेयर होते हैं पाइथन वाले। क्योंकि पाइथन में क्या है, डायरेक्ट आपने प्रिंट लिख दिया और आपका प्रिंट हो गया। उसके लिए कितनी लाइब्रेरीज यूज होती है ये किसी को पता नहीं होता है। तो किसी भी लैंग्वेज को, मतलब जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की अगर आप बात कर रहे हो, तो जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे पहली बनी थी। तो इसको आप डिटेल में पढ़िए, इसको आप डिटेल में पढ़िए, और फिर उसके बाद, यस, उसके बाद आप कोई तो भी एक अच्छा, एक मतलब जितने मैंने आपको एप्लीकेशन बताया जावा के, उसका कोई भी एक एप्लीकेशन आप जावा के थ्रू जरूर कीजिए। मान के चलिए जैसे आप कर रहे हो फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप एप्लीकेशन बाय यूजिंग जावा, तो फिर आप लगे तो आपका करियर पाइथन में शिफ्ट कर सकते हो। तो इन योर रिज्यूम यू कैन सी बोथ, आप दोनों भी तरीके देख रहे हो, बट एक ही तरीके की दो चीजें मत कीजिए। मतलब आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन पाइथन के थ्रू भी आता है, जावा के थ्रू भी आता है, वो नेगेटिविटी थोड़ा लगता है कि ये फिर जावा में भी कर रहा है, पाइथन में भी कर रहा है। तो प्रोग्रामिंग इतना ईजी नहीं होता है। प्रोग्रामिंग में आपको सबसे इंपॉर्टेंट रखना होता है पेशेंस। स्टार्टिंग में यस आई विल सजेस्ट कि आप सी लैंग्वेज पढ़िए, फिर आप किसके और जाएंगे, जावा के थ्रू जाएंगे। जावा को अच्छा पढ़िए, और उसके बाद फिर आप कुछ शॉर्टकट्स या जो नए नए लैंग्वेजेस आ रहे हैं जैसे पाइथन है, इसमें आप करियर आपका क्रिएट कर सकते हो। बट एक बात है जो मैं हमेशा हमारे स्टूडेंट को बताता हूँ, कि जिनको जावा आता है उनको कोई भी लैंग्वेज और कोई भी टेक्नोलॉजी बड़ी आराम से समझ में आ जाएंगी। वो ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जावा एक स्टेबल लैंग्वेज है, सारी चीज़ें जावा के अंदर अवेलेबल है, सारी चीज़ें, जितनी चीजें बाकी लैंग्वेज में भी नहीं मिलेंगी आपको नए लैंग्वेज में, उतनी चीजें आपको जावा के अंदर मिलेंगी। सो एक कंप्लीट लैंग्वेज अगर आप सीखते हो, हर एक चीज के लॉजिक आपके आंखों के सामने चले जाते हैं, तो फिर वो लैंग्वेज का एडवांटेज आपको फ्यूचर में जरूर होता है। तो अगर हम सैलरी की बात करते हैं, तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो जावा में, तो आप देख रहे हो कि जब आपको 4+ ईयर एक्सपीरियंस हो जाता है तो यू कैन एक्सपेक्ट सैलरी हाइक अप टू 22%। यस, और ये जो होता है सैलरी ऑलमोस्ट कितना होता है, यस, कितना होता है, 10 लाख के करीब होता है, ठीक है। सो 10 लाख का ईयरली मतलब ऑलमोस्ट आप 5 से 6 साल के बाद या 9 to 8 लाख आप कर सकते हो। इफ यू नो अबाउट इफ यू नो अबाउट सम वेबसाइट्स वेयर यू कैन फाइंड द जॉब्स, पता है किसी को जहाँ पे आप जॉब को सर्च कर सकते हो? बहुत फेमस है, Naukri.com है, Indeed.com है, इस पर आप वेबसाइट पे जरूर जाइए। monster.com है, और यहाँ पे आप जस्ट जावा डेवलपर ऐसा एक कीवर्ड लिखिए, सीनियर जावा डेवलपर आप ऐसा एक वर्ड लिखिए। यू कैन यू कैन यू कैन यू कैन यू कैन ऑब्जर्व देयर आर मेनी जॉब्स जहाँ पे आपको 50+ सैलरी 1000 मिनिमम आपको दिखेंगे। सिमिलरली आप जूनियर जावा डेवलपर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको
फ्रेशर करके आपको रिक्रूट कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप देखोगे कि 25+ मिनिमम आपको जॉब मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनता है जावा का बड़ा सिक्योर्ड होता है, बड़ा रिलायबल होता है, फास्ट होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है. सो देर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ दी जावा जावा प्रोग्राम, राइट. जावा के प्रोग्राम में बहुत एडवांटेज होते हैं, सो दैट कंपनीज आर वर्किंग ऑन द जावा बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नेचर. सो जब अगर आप जावा सीखते हो तो ये कुछ चीजें आपको मिलती है, बट इसमें पेशेंस आपको बहुत चाहिए, क्योंकि कैसा होता है बहुत एरर आते हैं जावा में बिकॉज ऑफ द सिंटैक्स एरर. स्टैटिक टाइप चेकिंग करता है, एक टाइप का कोड आप दूसरे टाइप में डायरेक्टली पुटअप नहीं कर सकते, वहाँ पे एरर्स आपको बहुत आते हैं. सो इसीलिए बहुत सारे एरर्स आपको फेस करने होते हैं इनिशियल फेज में, बट अगेन इट नीड अ पेशेंट. आपको पेशेंस की जरूरत चाहिए वहाँ पे, और फिर एक अच्छा आप डेवलपर, जावा का डेवलपर हो सकते हो. इन एन एवरेज, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप आज से स्टार्ट करते हो तो आप 6 मंथ के अंदर आप एक अच्छे डेवलपर बन सकते हो, जूनियर जावा डेवलपर, जिसमें आप जियो एप्लीकेशन में पढ़ सकते हो. तो अगर आपका करियर 6 मंथ का अगर कंसिस्टेंस अगर आप देते हो किसी लैंग्वेज के लिए, अभी तो आप सेकेंड ईयर में ही हो डिप्लोमा के, तो अगर आप इंजीनियरिंग में आपका बाकी है, आपका डिप्लोमा बाकी है, अगर आप अभी से ही अगर आप 6 महीने 7 महीने अगर आप लगाते हो कंसिस्टेंसली, अगर आप 2 घंटा 1 घंटा भी अगर रोज की प्रैक्टिस करते हो, तो भी आप फ्यूचर में एक अच्छे डेवलपर बन सकते हो. सो दिस इज व्हाट सैलरी हाइक. ओके, तो ये कुछ पोस्टिंग होती है, जो जावा, अगर आप जावा डेवलपर होते हो तो ये कुछ पोस्टिंग होती है जिस पे आप जॉब ले सकते हो. आप देख रहे हो कि जहाँ पे भी सीनियर वगैरह वर्ड लिखा हुआ है, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है. सो अगेन इट नीड एन एक्सपीरियंस, और अगर आपको जावा अच्छे से आता है तो यस, आप कंपनी टू कंपनी स्विच भी कर सकते हो. आप यस, जॉबलेस तो बिल्कुल ही नहीं रह सकते हो, बिकॉज many companies, right, many big companies, good companies are working on java. तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है जावा का, तो yes, they will definitely hire you on a good salary package. Yes, okay, I guess I'm just done with related to java. किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, इंटरैक्टिव कुछ इंटरेक्शन कुछ करना है, कुछ क्वेश्चन पूछने तो आप पूछ सकते हो. Actually, I have another slides related to actually related to job oriented. Okay, but I guess second year diploma is very too small for the सैलरी इशू, राइट. कुछ चीज़ें होती है जैसे ये सैलरी पैकेजेस होते हैं ई लिटमस पर आप देखिए कि कंपनी नहीं आती हमारे कॉलेज में, सर हम इंजीनियरिंग कर रहे, छोटा कॉलेज है, टायर 3 कॉलेज है, टायर 4 कॉलेज है, फिर हम कैसे कंपनीज के लिए लग सकते हैं. तो अभी आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी आप कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकते हो. ई लिटमस, एम कैट, कोकूबस, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके बारे में गूगल जरूर कीजिए एक बार, ठीक है. एलिटमस, एम कैट, कोकूबस, ट्रैक. तो इसमें आपको देखेंगे कि एक टेस्ट होती है एप्टीट्यूड की 60 मार्क्स की, जिस दिख रहा है आपको स्लाइड्स, आई गेस नहीं दिख रहा है. ओके, आई गेस नाउ इज विजिबल, राइट. सो एलिटमस होता है, एम कैट होता है, कोकूबस, मतलब अगर कंपनीज वगैरह कॉलेज में नहीं आती है, कंपनी छोटे आती है, जैसे गूगल वगैरह नहीं आती. यहाँ पे आप देख रहे हो इन्फोसिस है, या फिर एल एन टी है, महिंद्रा कंपनी, आईबीएम है, एसेंचर है. बड़े कंपनीज हमारे कॉलेज में नहीं आती है, तो हम कैसे रिक्रूट करें, हम कैसे हमारे स्किल्स को दिखाएं. तो आप इस कंपनीज पे आप आपका अकाउंट बना सकते हो, और यहाँ पे आप एक टेस्ट दोगे 60 मार्क्स की. अगर वो आप क्रैक कर देते हो तो फिर आपका डायरेक्टली वहाँ पे इंटरव्यू होता है. यस, एलिटमस एम कैट. आप इसको गूगल जरूर कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बिल्कुल गूगल जरूर कीजिए इसको, ठीक है. इफ यू एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क. Yes, any questions? Sir, I have Sir, one. I have one.
question. Yes. Yes, Aks. Sir, in government organizations like ISRO, DRDO, which programs are used? They are basically actually preferring Java applications. So whenever you see a government website, you can right click on that code. मतलब कोई भी website पे जब आप visit करोगे government से related, you just click on the right click कीजिए आप वेब पेज पे और क्लिक ऑन व्यू पेज सोर्स। सो वहाँ पे आप देखोगे कि वो जो एप्लीकेशन मतलब उन्होंने जो कोडिंग की है, वेब पेज जो बनाया है वो जावा के थ्रू ही बनाया है। बिकॉज दे प्रोवाइडिंग मतलब जावा इज मोस्ट सिक्योर्ड लैंग्वेज एवर मेड, जस्ट बिकॉज वो कुछ मतलब पॉइंटर्स वगैरह यूज नहीं करता है या फिर कुछ मतलब रेफरेंस वगैरह स्टोर नहीं करता है। और यस क्लास बहुत स्ट्रिक्ट होता है टाइप चेकिंग में, वो भी कुछ रीजंस होते हैं। सो दे आर एक्चुअली यूजिंग द जावा। बट जैसे मैंने अभी बताया आपने कि डीआरडीओ के लिए मुझे काम करना है या फिर डीआरडीओ के पेजेस बनाने हैं फॉर एग्जांपल, या गवर्नमेंट एजेंसीज के कुछ वेबसाइट बनाने हैं। सो अगर आप देखोगे तो उसके सीनियर एसोसिएट आईटी ऑफिसर की पोस्ट हमेशा होती है। अगर आप किसी गवर्नमेंट की जॉब्स अगर आप देखते होंगे, अगर आप सर्व करते होंगे, तो एक पोस्ट होती है आईटी ऑफिसर की। तो अगर आप आईटी ऑफिसर अगर आप बन जाते हो तो आपका ये बेसिकली काम होता है कि किसी वेब पेज का आप मतलब वेब पेज वगैरह बनाना या फिर उनके कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना, ये आपका बेसिकली काम होता है। तो वहां पे अगर आप देखोगे रिक्वायरमेंट में, मतलब जरूर आप देखिए आज कि आईटी ऑफिसर एट गवर्नमेंट कंपनीज, तो फिर आप जब देखोगे उनकी ये क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट क्या होती है, दे आर ओनली आस्किंग अबाउट जावा। आपको जावा मतलब जावा के थ्रू अगर आपको वेब पेज बनाते आता है, देन यू आर एलिजिबल। दे आर नॉट आस्किंग लाइक पीएचपी अगर आपको आता है या फिर सी शार्प डॉट नेट वगैरह आपको आता है। बिकॉज जावा अगर आप यूज करते हो तो कुछ ऐसी कुछ फंक्शनैलिटीज होती है जो सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, बाकी चीज़ें करती है, बाकी लैंग्वेजेस प्रोवाइड करती है, बट जावा के कंपेयर में सारे लैंग्वेजेस थोड़े से छोटे पड़ते हैं। Okay, sir. Yes, any more questions, please? Sir, I have a question. Yes, please. Sir, in an application or game, can two programs can be means two language can be used at a time? Actually, yes, it can be used. Yes, it can be used. It depend on the language actually. It's depend on the language. जैसे जावा में अगर आप प्रोजेक्ट यूज कर रहे हो तो जावा के साथ आप कोई भी प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, बट इट डिपेंड कि वो प्लेटफॉर्म वो सेम होना चाहिए। मतलब जावा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जावा जहाँ पे इंस्टॉल होने वाला है, जहाँ पे जावा का प्रोग्राम जहाँ पे एग्जीक्यूट होने वाला है, उसी का आर्किटेक्चर जो थर्ड पार्टी या जैसे फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस का प्रोग्राम आप जावा के साथ कंबाइन करना चाहते हो, जस्ट केस फॉर एग्जांपल, तो डेफिनेटली जो ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होती है वो विंडोज 32 ही होनी चाहिए, अगर वो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम विंडोज 32 में बना है तो। और ज्वाइनिंग का कोई बड़ा इशू नहीं है। लिंकर होता है, लिंकर ही एक कंपोनेंट होता है जो दो फाइल को कंबाइन करता है। जावा मैंने आपको बताया JAR नाम का कंपोनेंट होता है जो दो फाइल को कंबाइन करता है। तो आप दो EXE फाइल, यस, दो EXE फाइल आप दे दीजिए लिंकर, सॉरी, दो आप OBJ फाइल, जैसे अभी जावा का प्रोग्राम जब आप कंपाइल करते हो तो कौन सा बनता है, डॉट क्लास फाइल। सो डॉट क्लास फाइल आप दे दीजिए इसको, आपके लिंकर को 3-4 फाइल दे दीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपको कंबाइन करके दे देगा simultaneously. There are many linkers, they can join different extension also, बट वो डिपेंड करेंगे वो एग्जीक्यूट होगा तो प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट होगा। जावा का तो कोई इशू नहीं है, बट बाकी जो कोड उसके साथ ज्वाइन होने वाला है उसका इशू जरूर होता है। एक्चुअली देर आर मेनी थिंग्स आई कैन डिस्कस विद यू, बट वही टाइम के हिसाब से, और डेफिनेटली 2 घंटा इट्स वेरी हेक्टिक, 2 घंटे सुनना भी जान पे आता है, और ठीक है एक्सप्लेन करना भी थोड़ा डिफिकल्टी पार्ट होता है। सो जितना मैंने एक्चुअली बताना था आई गेस इतना मैंने इंपॉर्टेंट तो बता दिया कि आप जावा में करियर ज़रूर स्टार्ट कर सकते हो। मैंने स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस किया आपके, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि प्राइवेट कंपनी में जॉब सिक्योर नहीं है सर, ऐसा वैसा आप बोलते हो, तो फिर मैं ज़रूर आपको बोलूँगा लर्न जावा, क्योंकि जब हम HTML की बात करते हैं, PHP की बात करते हैं, बहुत वेब डेवलपर बड़े होते हैं। जब हम किसी सी शार्प से बात करते हैं, सी शार्प की बात जब करते हैं, तो बहुत सारे आपके
मतलब डेवलपर पढ़े होते हैं, बट जब जावा की बात आती है, जब एक्सपीरियंस जावा डेवलपर की बात आती है, तो उनके लिए बहुत ओपनिंग्स होते हैं जॉब्स के, जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, मैंने एक शॉर्ट में मैंने एक ये किया था, एक समराइज मैंने किया है कि आप कौन से लैंग्वेज के लिए क्या बढ़िया सीख सकते हो। दैट इज अ समराइज एक्चुअली। तो यस, देयर आर जावा फॉर ऑल द काइंड ऑफ द डेवलपमेंट। आप डेफिनेटली सिस्टम के लिए जावा यूज कर सकते हो, डेस्कटॉप के लिए जावा कर सकते हो, गेम के लिए जावा बना सकते हो, मोबाइल के लिए जावा यूज कर सकते हो, फॉर एवरीथिंग यू कैन लर्न जावा। बट मैंने यहाँ पे एक, मेरे ख्याल से एक आर्किटेक्चर मैंने एक समराइज किया है कि आप अगर आपको कौन से फील्ड में जाना है, यू हैव टू डिसाइड वन फील्ड, गेम डेवलपमेंट, डेस्कटॉप डेवलपमेंट। आई कैन ऐड वन मोर फील्ड हियर, सिक्योरिटी एनालिस्ट। आप देखोगे यहाँ पे कि जावा तो ठीक है सीख लोगे आप, तो अगर आपने देखा है कि मोबाइल डेवलपमेंट ही करना है तो फिर तो जावा है। गेम डेवलपमेंट करना है तो यस, देयर इज अ जावा लैंग्वेज। बट अगर मैं कंपेयर करूंगा बाकी लैंग्वेज से, तो सी शार्प में जो गेम बनते हैं विच आर मोर क्लासी देन द जावा। दॅट डझंट मीन की जावा के गेम्स बहुत बुरे होते हैं आणि एकदम कामाचे नसतात। बट अगर हम कंपेयर की बात करते, तो अगर आप सोचते हो कि मला एकदम एक्सपर्ट बनायचं गेम मध्ये, मेरे से अच्छा कोई गेम ना बनाते हो, या फिर आई वॉन्ट टू बी गुड गेम डेवलपर, सो फिर आप सी शार्प की इधर जरूर जा सकते हो। अगेन सी शार्प इट्स एक्सटेंशन ऑफ सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज। तो आप जरूर सी प्लस प्लस पढ़िए, सी लैंग्वेज पढ़िए, फिर आप सी शार्प में एज अ गेम डेवलपमेंट करियर बिल्कुल कर सकते हो। जब मोबाइल की बात आती है तो स्विफ्ट सीख सकते हो, कॉटलिन सीख सकते हो, जावा, सी शार्प। उसके अलावा आप रिएक्ट नेटिव सीख सकते हो, उसके अलावा आप आयोनिक सीख सकते हो। ठीक है, इतने सारे चीजें और भी बहुत होंगे। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे नोट डाउन किया है सिंपल सिंपल। तो अगर आप देखोगे तो स्विफ्ट एप्पल के लिए यूज होता है, जो आप iOS देखते हो, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी एप्पल के मोबाइल्स वगैरह देखते हो, वहाँ पे स्विफ्ट वगैरह यूज करते हैं। जावा को ही एक्सटेंड करके कॉटलिन बना है। सो यू कैन सी दिस आर बोथ द सेम। मोबाइल डेवलपमेंट, यस, as far as game is concerned, you can use C Sharp for game development, जो मोबाइल में भी आप बना सकते हो। बट जब कंप्लीट एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यू कैन यूज जावा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. ओके, सो लास्टली द बैकएंड डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया कि 90% ऑफ द वेब पेज एप्लीकेशंस आर बिल्ड अप यूजिंग PHPs। बट जब हम सिक्योरिटी की बात आती है, जब हम गवर्नमेंट के रिलेटेड, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जब हम वेबसाइट की बात करते हैं, जैसे अमेजोन वगैरह हो गया, तो वहाँ पे देखो कि ट्रांजैक्शन का जो गेटवे होता है वो जावा के थ्रू ही बनाया होता है। और जब लुक की बात आती है, डिजाइनिंग की बात आती है, तब हम यूज करते हैं PHP वगैरह यूज करते हैं। जब हमको जैसे नॉट कमर्शियली, मतलब जस्ट प्रोडक्ट बेस या फिर UI बेस, मतलब एक लुक अच्छा दिखना चाहिए, डेटा स्टोर झाला पाहिजे। सिक्युरिटी इज नॉट अवर फर्स्ट कंसर्न, सो यू कैन गो फॉर PHP फॉर वेब डेवलपमेंट। अदरवाइज इफ यू वांट फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज और ट्रांजेक्शन रिलेटेड कुछ चीजें होने वाली हैं, तो फिर आप जावा के थ्रू आप जा सकते हो बैकएंड के लिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस और बढ़ चुकी है, नोड जेएस भी आ चुका है, एंगुलर जेएस भी आ चुका है, जिसका आप यूज कर सकते हो। डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी इज विल बी जावा। तो ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए आप जावा कर सकते हो। ठीक है, तो डेटा इंजीनियरिंग के लिए भी आप जावा कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे कहीं पे भी जावा लिखा नहीं है, बिकॉज जावा के थ्रू वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पाइथन। जैसे आपको पता है डेटा इंजीनियरिंग या डेटा साइंस या मशीन लर्निंग की जब बात करते हैं, तो पाइथन और आर का यूज सबसे ज्यादा होता है। और सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए मैं बोलूंगा JS, रिएक्ट JS एंड एंगुलर JS। सो अगर आपको लगता है कि एक वेब एप्लीकेशन बनाना जहाँ पे आपको सिक्योरिटी देनी है फ्रंट एंड लेवल पे ही देनी है, तो आप ये चीजें सीख सकते हो। तो ये कुछ समराइज है, मतलब अगर आपको लगता है कि करियर बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग ये लैंग्वेजेस आप पढ़ सकते हो। तो ये मैंने थोड़ा सिंपल कर दिया। वही बात होती है, अगर आप जावा कर लेते हो तो फिर आप हर एक फील्ड में फिट हो सकते हो। यस, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, 1-2 महीने, आप हर एक फील्ड के लिए सुटेबल हो सकते हो। और किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं? यस, एनी क्वेश्चंस गाइस? यस, एनी क्वेश्चंस?
Students, if you have any questions, then raise your hand. Sir, I think students have understood everything. So we'll go for the vote of thanks. Okay, and thank you. Thank you for patient listening, guys. Yes, thank you, sir. Vedika, please start Yes, vote. ma'am. Thanks. Yes, ma'am. Good afternoon, everyone. I am Vedika Patil. I feel glad that I have been given the opportunity to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of Kusrowadia Institute of Technology, extend a very hearty vote of thanks to the speaker, Mr. Nikhil Karle, for sharing his valuable knowledge on the topic Java and also introduced career options for a programmer. It was really great listening to you, sir. We all will surely implement this in our future studies and work too. I also express my sincere gratitude towards the head of the department, Dr. A.S. Chandak, for allowing us to organize this webinar. I would also like to thank the faculty advisor, Mrs. Shubhangi Verma, for her guidance. And to the attendees, thank you so much for attending this webinar. We hope you all liked it. Once again, thank you for your attention. Thank you. Thank you so much. Thank you. Sir, I would like to request, and I would like to request all faculty coordinator, not faculty coordinator, student coordinator, to turn on their camera. So again, we'll have a one screenshot. Students, please. Where are others? Kaustubh, then Preshit, Kaustubh Preshit, turn on your camera. Yes. Yes, ma'am. Sir, could you please turn off the screen sharing, please? Yes, thank you, sir. Yes. Yes, sir. Thank you, sir. That was a brilliant presentation, sir. Student understood everything. Thank you, sir. There are a lot more topics actually. It's not been difficult to go that flow क्योंकि Yes, कैसा होता है topics बहुत ज़्यादा होते हैं और basically the student are from second year and third year diploma. yes, sir. So these things might be find difficult for them to understand, right? Yes, sir. Yes. Because sir, last month we conducted the workshop on app development, and their student felt difficulty in programming because the resource person started teaching in the Java, and the most of the students are from. Yes, rather I will suggest for everyone if you are listening me, rather than I will means जैसे अभी Android का मैंने अभी बताया कि आप Java के थ्रू कर सकते हो. Now there are technologies like Ionic which I mentioned at the last. Ionic technology, you can use that technology which not needed many things, right? Java, you don't need to learn Java for that. You can go for the HTML CSS. I think most of the people are worried about Java, HTML and CSS. अगर आपको HTML और CSS भी आता है तो you can go for Ionic app development. One more important thing related to Ionic app development is you can use that same program or same application into that Apple operating system or Apple iOS devices, और you can use the same application at the Android. क्योंकि जब आप Android का app बनाते हो तो यहाँ पे execute नहीं होता है, iOS पे execute नहीं होता है. तो HTML CSS भी अगर आपको आता है बेसिक, अगर आप W3 स्कूल से भी करते हो 8-10 दिन में, तो आप आयोनिक का फ्यूचर, आयोनिक में आप करियर बना सकते हो.
So that will be great actually. Okay. Thank you, sir. Thank Yeah. you a lot. Yes. Okay, students, we'll stop now.